Good morning, everybody. Good morning, Today sir. Good morning, Good sir. morning, sir. अपना Good camera morning, sir. on रखेंगे। Good morning. Good morning, sir. Good morning, सबको sir. थैंक सबको बोलने की जरूरत नहीं है। Morning, sir. बस मेरा गुड मॉर्निंग स्वीकार करिए आप। और कैमरा ऑन रखेंगे, माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर अनुकृति शर्मा मैम, who is associate professor in Department of Commerce and Management and my senior at this University of Kota, Kota, Rajasthan, India. He is also director of Skill Development Center over here. She is also Dean Honorary of Tourism and Hospitality at Vishwakarma Skills University, Jaipur, which is a state university. She served 3 years as a head of the Department of Commerce and Management of University of Kota. In 2015, she received a research award from University Grant Commission UGC, New Delhi, for a project analysis of status of tourism in Hadoti and Shekhawati region states in Rajasthan, opportunities, challenges, and future prospects. He's doctorate from University of Rajasthan in tourism marketing, and she completed her dissertation research on tourism in Rajasthan progress and prospects. She has two postgraduate degrees, specializations, one in international business and the other one is in business administration. Her special interest areas are tourism, tourism marketing, strategic management, and international business management. She is appointed as official partner of BRICS DUT funded project for years 2022 to 24. Big Research Institute grant project and which is titled Growth and Sustainability of Livelihood in BRICS countries. Knowledge sharing in social justice, governance, and multilateralism. Dr. Sharma is a Routledge feature author. Uh, she is book series editor for Building the Future of Tourism, published by Emerald Publishing UK. She is also book series editor of Routledge Insights in Tourism series, Routledge UK. She also serves as book series editor of Cabby Festival and Event Tourism and Hospitality series and Perspective and Anthropology in Tourism and Hospitality, Apple Academic Press, Taylor and Francis Group. She has edited books on tourism opportunities and ventures on maximizing business performance and efficiency through intelligent systems under IGI Global Scopus Indexed. Tourism Sustainable Tourism Development Futuristic Approaches under Apple Academic Press, USA, under the series in Advances in Hospitality and Tourism. She has published various books under Routledge, under Taylor and Francis Group, with Emerald Group, with Cabby, with Springer. She's a very active researcher as well as writer. She doesn't need any introduction when you go in the field of tourism. She is a well known personality in India as well as abroad. She has visited many countries. I think more than 7, 8 countries in last 5 years for academic purposes, and she has very good reputation as a writer and researcher in the field of tourism. So I welcome today, ma'am, for lecture for the research scholar in this uh, program. And now I hand over the mic to you, ma'am. But before that, I also want to add one more thing that is also working on major research project under Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Ministry of Human Resource Development of India. She is member of 7 professional bodies and attended various national and international conferences, presented 45 papers. She is invited as keynote speaker, panel member by different countries like Sri Lanka, Uzbekistan, South Africa, Nepal, Malaysia, Indonesia, and Turkey. She has been invited as a visiting professor at Kazakhstan and Uzbekistan. So we have a very dynamic personality today with us, and I hope you will enjoy the lecture and get the most out of it. I hand over mic to you, ma'am.
Anukriti ma'am. There was some connection problem of the internet, but I think it is sorted out now. Thank you very much, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. I have just Good morning. Thank you. a small portion of your Good morning, madam. curriculum, and a small introduction is being given by me about you. Because Good if I morning. have each and everything from your CV, then it will take an hour because of your such large engagements and such huge work you have done in last 10 years. So now I hand over this mic to Thank you you. so much, Ashish sir. Thanks a lot, Dr. Ashish Asopa ji, for such a brief introduction and for inviting me for this session. It is absolutely a pleasure for me to be here with the students. Thanks a lot for the opportunity. So now, without taking much of the time, I think I have to proceed with my session. Am I, Dr. Ashish ji? Can I start my session now? With your due permission. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. How are you doing, everyone? Good morning, madam. Good morning, madam. Good morning, good morning, good morning. Good morning, madam. So if we will Good add morning, saying good madam. morning, Good morning. each Good and morning, madam. everyone, namaskar. Good morning, Good ma'am. morning, Good morning, madam. good morning, good morning. But I think now we have to proceed with the session Good rather morning, than saying ma'am. good morning again Good and again. morning, ma'am. Otherwise, the half, oh my God, half session will go Good in good morning, morning madam. only. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Suprabhat, ma'am. Good morning, madam. सुप्रभात. एक बार जब सबका गुड मॉर्निंग हो जाए तब मुझे बताइएगा, मैं सेशन चालू कर दूंगी मेरा. अस्सलाम वालेकुम, मैडम. आप तो स्टार्ट वालेकुम कर दीजिए ना. अस्सलाम. सबके गुड मॉर्निंग हो गए मैडम. गुड मॉर्निंग होके इधर आ गए. अब सुनिए, अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, आप लोगों का टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का टाइम है, क्योंकि हम लोग तो जो बनना था बन चुके हैं. नाउ यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट? सो नाउ इट्स बेटर. मैंने सबकी गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर ली है विद माई होल हार्ट. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट वन एंड ऑल कि आप लोगों को मैंने देख लिया है, अब तक बहुत देर से देख रही हूँ मैं. सबको हैंड रेज करना बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे लगता है सबको रिएक्शंस देने भी बहुत अच्छे से आते होंगे ऑन द जूम मीटिंग. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज उसको आप अपना माइक ऑन करके मत बोलिएगा, बट रिएक्ट जरूर कर दीजिएगा उसके ऊपर. और अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ चीज समझ में आ रही है तो उस पर भी हैंड रेज कर दीजिएगा. एंड सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल that my session will not be one side session. Let me tell you very frankly, क्योंकि जो सेशन मेरा सुन रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि इस सेशन में आपको मजा बहुत आने वाला है, लेकिन ये सेशन 2-वे कम्युनिकेशन पे होगा, 1-वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा. इट विल बी नॉट लाइक दिस दैट आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, और कहीं लेटे हुए हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं फिर रहे हैं और सुन रहे हैं. ये नहीं करना प्लीज, ठीक है? और अगर आप वाकई में इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो बी अ लिटिल फोकस्ड, ठीक है? मेरा जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो दिया गया है अबाउट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च. दिस इज माय टॉपिक, ठीक है, जो हम आज कवर करने वाले हैं. नाउ द पॉइंट इज दिस, मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से. हाथ रेज कर दीजिएगा प्लीज, सारे बोलना मत चालू करिएगा. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मूवीज? जस्ट रेज योर हैंड्स. Don't speak, don't on the mic, need not to. Yeah, मैंने देख रही हूँ बहुत सबके रिएक्शंस आ रहे हैं. काफी लोगों को मूवीज देखना बहुत पसंद है. अच्छा, कितने लोगों को घूमना पसंद है? How many of you like कि हम घूमने जाएं? बहुत सारे लोगों को पसंद है घूमना भी, आई थिंक. ओह वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल. और आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पढ़ना पसंद है? और कितने लोग हैं जिन्हें रिसर्च पसंद है? ये भी है, थोड़ा कम हो गया है नंबर, बट देयर आर फ्यू पीपल who really like research work and who really like to do studies. अब मुझे मेरा एक बार पीपीटी शेयर करने के लिए 2 मिनट का समय चाहिए प्लीज. Let me share my PPT with all of you and then we'll start talking further. Yeah. Can you see now my PPT? No, Is it ma'am. visible? No, ma'am. No, ma'am. Give me a second. Let me refix it. नहीं दिखाई दे रहा है मैडम.
ठीक है, मैं दोबारा कर रही हूँ. वेट. You are not allowed to share your screen. Why it is coming like this? Just give me 1 second. Is it visible now? Not ma'am. No, ma'am. अभी भी visible नहीं है. No ma'am. No, ma'am. Oh, can't I'm not able to share my screen. I don't know इन्होंने कुछ कर रखा हो. Just give me 2 minutes, please. Let me sort it out. Okay ma'am. Yeah ma'am. Now visible. Visible. Yes, now visible. That means the internet connectivity is little low or slow. That's why वो बहुत ही late से हुआ है visible आप लोग को. अब हम लोग को कुछ इसमें videos. It is visible now? Yes. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत सफाई से दिखा दे. Okay. Now my point is this. इसमें मेरे को कुछ आप लोगों को वीडियोस भी दिखाने हैं. अगर आप लोगों को थोड़ा वॉल्यूम कम आए या कुछ ऐसा हो तो प्लीज मैनेज करिएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी चीजें हैं. इट इज नॉट इन अवर हैंड. 1-to-1 होता तो एक अलग चीज हो जाती है, बट इट इज बिकॉज टेक्नोलॉजी वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट. सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर. So now let's start the topic. Our today's topic is objectives, types and significance of the research work. Fine? No visual PPT. आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को विजिबल है अब. मैक्सिमम ऑफ देम आर एबल टू सी द पीपीटी नाउ. Visible इट ma'am. इज विजिबल नाउ. या सो प्लीज आप लोग अपने यहाँ पे कनेक्शंस चेक करिएगा अगर जिनको विजिबल नहीं हो रहा है. अच्छा, सेकंड स्लाइड आपको दिख रहा है. आप लोग को स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप. इज इट Yes, विजिबल? Yes. ओके. सो Yes, ma'am. अभी मुझे दिख रहा है. सो कुछ स्टूडेंट से मुझे जवाब चाहिए. इसके अंदर आपको कुछ रोड ट्रिप्स दिख रही होंगी 2019 से 2024 तक. जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बोल दिया है कि मेरा सेशन बिल्कुल भी 1 वे नहीं होगा. इट विल बी अ 2 वे कम्युनिकेशन. आप में से जो भी आंसर्स देना चाहे वो आंसर्स दे सकते हैं. ठीक है. 2019 का एक रोड दिख रहा है आपको, एक 2020 का दिख रहा है, एक आपको 2021 का, 22, 23 एंड 24 का. चॉइस इज योर्स. आपको इनमें से सबसे अच्छा जो रोड है वो कौन सा लग रहा है, मुझे ये जवाब चाहिए. किसी स्टूडेंट कौन देना चाहता है जवाब? इनमें से एक रोड है जो आपके लिए बनी है 24 2024 का. 2024 मैम. 24. 23 उसमें हरियाणवी का 2024. यू कैन सेंड इन चैट बॉक्स. 2023. फाइन. अब नाउ अच्छा अभी बस ठीक है, इसके आंसर्स काफी है. नाउ कम टू द पॉइंट. डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? किसी का प्लीज ये म्यूट करिए माइक आपका. किसी के माइक में से मुझे. ओके. स्टूडेंट्स आर राइटिंग 2023, 2024 एंड 2022. ओके, मतलब हमारे पास में जो चॉइसेस आई है, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स वांट्स टू गो इन 2022, 23, 24. कैन आई आस्क समवन कि 2019 या 21 या 2020 किसी ने सेलेक्ट क्यों नहीं किया? What is the reason? No one selected 2019, no one selected 2021 and no one selected 202. क्यों? सब लोगों ने 2020 एनवायरमेंट No स्पेस वगैरह नहीं है. एनवायरमेंट मैम पुरानी चीजें अच्छी नहीं लगती. नहीं है. अच्छा, पुरानी चीजें अच्छी लगती है, नई चीजें अच्छी लगती है. वहाँ पे एनवायरमेंट में मैडम पेड़ पौधे गिफ्ट ऑफ पेड़ पौधे नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, रोड क्लीन है बस. अच्छा ठीक है. अब मान लीजिए ये जो एक ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मान लीजिए अज्यूम करिए ये आप हैं, तो क्या इस जगह पे आप जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल जाना चाहिए. मैम बिल्कुल जाना चाहिए. यस मैम. जाना Yes, चाहेंगे. अच्छा, जरूर, बहुत जरूर. बढ़िया. कौन लेके चलेगा मैडम? अब ठीक है. अब नाउ लिसन ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज, आई हैव अ रिक्वेस्ट. आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर दे, और म्यूट योर माइक्स नाउ, बिकॉज मैंने पूछ लिया जो मुझे पूछना था. जस्ट म्यूट योर माइक्स नाउ. नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी सीरियसली. जब हम लोगों ने आपसे पूछा, मतलब व्हेन आई आस्क्ड यू दैट गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, इनमें से कौन सा रोड आप जाना चाहेंगे, कौन सा रोड आपको अच्छा लग रहा है, यू हैव गिवन मी योर आंसर. लेकिन यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट ने ये ब्रेन यही लगाया है, नो वन यूज द ब्रेन दैट ये जितनी भी रोड है ये एकदम एंडलेस रोड है.
कोई एंड दिख रहा है किसी भी रोड का? चाहे 2019 का देखिए, चाहे 24 का देखिए, चाहे 23 का देखिए, चाहे 21 का देखिए। तो आप लोगों ने क्या देखा है? यू हैव सीन कि जो रोड है दैट इज स्मूथ, that is wonderful, that is looking beautiful, that is green, that's why we want to go on that road. But anyone from you, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 212 बच्चों में से किसी एक स्टूडेंट ने ये नहीं सोचा कि जितनी भी रोड्स हैं, ये रोड्स जा कहाँ रही हैं? सो जब आप हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, है ना, तो जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं और आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हो, तो ऑब्जेक्टिव इज समथिंग लाइक दैट डेस्टिनेशन, जो आपको ये बताता है कि एग्जैक्टली जब आपको रिसर्च स्टार्ट करनी है तो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। जितनी भी रोड ट्रिप्स आपने सेलेक्ट करी है, 22, 23, 24, सारी की सारी रोड ट्रिप्स इंक्लूडिंग 2019, इंक्लूडिंग 2020, सब में एक ही कॉमन फैक्टर था, और वो कॉमन फैक्टर ये था कि इनमें से एक भी रोड का एंड नजर नहीं आ रहा, that where we are reaching, it is not visible at all. तो अगर आपको ये लगता है that you are doing a PhD work and it will be a road like which is 2024 और 2023 कि एकदम स्मूथ होगा, सब कुछ ग्रीन होगा, no bumps आएंगे, nothing like that, no speed breakers and everything will be gonna good, you are in a myth. ये एकदम एक गलत परसेप्शन है, इसको प्लीज सबसे पहले माइंड से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि आपको 2019, 20, 21, 22, 23, 24 एवरी टाइप ऑफ स्ट्रगल इन रिसर्च वर्क आपको करना ही पड़ेगा। इस पीपीटी के अंदर एक जो फोटो मैंने आपको दिखाई, इसके अंदर हम जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन नजर आ रहा है। अब नाउ कंपेयर दिस पीपीटी, देयर इज अ न्यू स्लाइड व्हिच आई एम शोइंग यू राइट नाउ हियर। अब ये जो है इस पीपीटी में, मतलब इस वाली फोटो के अंदर और जो पहले वाली हमने देखी थी रोड ट्रिप, उसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दिस, व्हेन वी सी द अर्लियर वन, द फर्स्ट slide in which we are not able to see the destination, now in this one, in the third slide, we are able to see the destinations but we are able to see the objective. यहाँ पे भी रोड एंडलेस है, एक जॉगिंग कर रहा है व्यक्ति, रोड एंडलेस है, दो एल्डर पर्सन चल रहे हैं, रोड एंडलेस है, दो लेडीज हैं जो वॉक कर रही हैं या जॉगिंग कर रही हैं, रोड एंडलेस है। लेकिन हम यहाँ बोल सकते हैं इसको देखकर that they are doing morning walk, they are doing yoga, they are doing jogging, they are doing something walking like things. Miss, we have a clear purpose is visible here, and that is the importance of research objectives in our research work. अगर आप कोई भी रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, चाहे वो आप अपनी पीएचडी कर रहे हैं, चाहे वो आप एक रिसर्च पेपर ड्राफ्ट कर रहे हैं, चाहे आप एक किताब के लिए चैप्टर लिख रहे हैं, you must have to focus first and foremost on the research objective. Until unless you don't know the research objective, you cannot frame the entire thesis. Even you cannot frame a 10 pages paper, even a research paper, even you cannot draft without knowing the research objectives. Now the questions comes here that how we will draft the research objective. Research objective तक जाने के लिए it is very much important that you first know that what is the research, what is the problem exactly. आप जब तक प्रॉब्लम नहीं देखोगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं कर सकते। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि एग्जैक्टली इशू क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप अपना उद्देश्य तो डेफिनेटली निर्धारित नहीं कर सकते कि मुझे करना क्या है। वो तो तभी पता चलेगा जब आपको ये पता चले कि दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? सो अंटिल अनलेस यू डोंट नो द प्रॉब्लम, you cannot decide the research question, you cannot decide the research objective. So first and foremost thing is that you have to see what is the problem exactly. On the behalf of the problem, you are able to select your topic. Okay, इसीलिए यहाँ लिखा गया है, a problem stated clearly is treated half solved. अगर एक प्रॉब्लम को आप ध्यान से लिख देते हैं या समझ लेते हैं तो आप आधी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर चुके होते हैं खुद ही, राइट? तो जब भी आप एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने जाएं, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये टॉपिक मैं सेलेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, इसको मैं सेलेक्ट कर क्यों रहा हूं, why I am even selecting this topic, what is the problem? Because everything is good, then why it is required to research? There is no need to research. If all things are good, if everything is better, if the world is only goody goody, then why you want to do the research? Because it is everything is going on smooth. We want to do research because research is not research, it is research. Why we are researching? Because there is some problem.
and we want to find out why this problem is coming. Okay, and to know about this, we have to first of all we have to see the vision, broad way, that what is the problem. As soon as you decide the problem, that this is the problem, that's why I need this topic, then you'll be able to decide the questions, research questions, and the research objectives. Okay, so that's why research objectives are very much important. अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही समझा दूं, आप प्लीज इस वीडियो को इस पर्पस से मत देखिएगा कि हम मूवी देख रहे हैं. नो, वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी, क्योंकि इसका बहुत मैंने एक पर्पसफुल ये वीडियो डाला है. हो सकता है आपको वॉइस थोड़ी कम आए, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का भी इशू है, वॉइस थोड़ी कम, आपको थोड़ा फोकस करके सुनना पड़े, बट प्लीज डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. इट्स अ वीडियो फ्रॉम अ मूवी, डू वॉच इट एंड होप सो कि आपको थोड़ा सुनाई दे इसके बारे में. आई थिंक प्ले हो जाए तो अच्छा है. ये वॉइस आ रही है? थोड़ी सी आ रही होगी. वॉइस नहीं आ रही मैम. चलिए, अब हम ज्यादा देर नहीं देखेंगे वीडियो, नहीं तो बच्चे लॉस्ट हो जाएंगे कि वीडियो क्यों चला रखा है मैम ने इतनी देर से. Have you seen one thing? Actually इस वीडियो में मुझे बहुत 2 सेकंड का और चलाना था, बट मैंने बीच में स्टॉप कर दिया क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा नहीं तो हमारे सेशन के लिए. इस वीडियो में आपने एक चीज नोट करी होगी. What was the point? मैंने ये वीडियो क्यों दिखाया है आपको? इसके अंदर दो व्यक्ति हैं जो एक प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उस प्लेन को उड़ाना उनको ऑफ कोर्स नहीं आता है. एंड देन दे कॉल टू द अथॉरिटी कि हम फंस गए हैं यहाँ पर. इतना सीन तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे फंस गए हैं इस प्लेन के अंदर. वी डोंट नो हाउ टू रन दिस प्लेन. बट जो व्यक्ति है जो बैठे हुए हैं वो ये नहीं जानना चाह रहे कि एग्जैक्टली द प्रॉब्लम क्या है. वो ये बता रहे हैं कि प्लेन को उतारने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्लेन को आपको चढ़ाना कैसे है, मतलब चलाना कैसे है. Then moreover it, he is talking about the specifications of the plane. That plane में 2 द्वार हैं, प्लेन इतना भारी है, प्लेन का इंजन इतना ऐसा है. He is describing the entire things about that aeroplane. जबकि urgency क्या है at that moment? The urgency was to tell the persons that how to save yourself. ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया है, हालांकि एक मूवी का वीडियो है और बहुत फनी वो है सीन, बट अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करके देखेंगे तो आप कभी लाइफ में रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को भूल नहीं सकते हैं. रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर? प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन को नीचे कैसे लाना है, ठीक है. तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए था आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी ये होना चाहिए था दैट यू मस्ट टेल द स्ट्रैटेजी how to save the people and what is the most important rescue which we can do at this moment. But हुआ क्या? हो कुछ और ही रहा था. What I mean to say here that जब आप रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं, जब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, वो कभी भी वेग नहीं होना चाहिए. वो कभी भी it should be centric. It should be very, very focused that what is the exact issue. You please talk about that issue only. Don't talk about this and that. At times we have noticed in the thesis, students research objectives जब लिखते हैं तो 4 या 5 नहीं लिखते, 10 से 15, 10 से 12 research objectives लिख देते हैं. क्या आपको लगता है कि 10 से 12 research objectives को in the thesis tenure आप अचीव कर सकते हैं? So the first step to draft a research objective, it should be very concise, it should be very, very clear, and it should be very declarative. What is declarative now? Declarative is something जहां पे आप ये declaration दे रहे हो, जहां पे आप एक तरीके से घोषित कर रहे हो कि this is what I am going to achieve or this is what I am going to do in this research work. So that's why we are talking about concise, यानी एकदम perfect, focused, clear research objective आपका होना चाहिए. Okay? Then we are talking about, because research objectives are something which are the end result of the research study. आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, let me tell you very honestly, क्योंकि इसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होने वाला है, उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका टाइटल क्या है. दूसरा, ये टाइटल आपने क्यों लिया है, जिसका ऑफ कोर्स आपको रिसर्च प्रॉब्लम बताना पड़ता है. क्यों लिया है मींस यू आर टेलिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. एंड तीसरा, दैट ये जो आपने टॉपिक लिया है, अच्छा इसलिए ले लिया, अब आप इसमें करने क्या वाले हो. दिस इज करने क्या वाले हो,
This is the exact answer where you have to reply the research objective. कि research objective मेरा क्या है? तो research objective is something which you are going to achieve through this research work, through the PhD. आप जिस जो भी PhD कर रहे हो उसके द्वारा आप जो भी प्राप्त करने वाले हो या हासिल करने वाले हो उसे ही हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हमेशा रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम कुछ और है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कुछ और ही आप बोल रहे हैं। आपका जो टाइटल है उसी को आप तब फाइनल कर पाते हैं जब आपके पास में रिसर्च प्रॉब्लम होता है। रिसर्च प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका टाइटल फाइनल होता है। जब टाइटल फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद में आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव फाइनल करना पड़ता है कि अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, बिकॉज रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे पूरी थीसिस ड्राफ्ट होने वाली है आपकी। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कोरिलेटेड विद द रिसर्च प्रॉब्लम। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिसर्च प्रॉब्लम आपने जो भी चुनी है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव उससे मैच करता हुआ आना चाहिए। देयर शुड बी नो गैप between these two things. Just keep this thing in your mind always, that there should be no gap. Now we are talking about the research objectives. तो एक अच्छा research objective जो होता है वो हमेशा स्मार्ट होता है। एक शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट, SMART. We all are like smart people अपन बोलते हैं, स्मार्ट सिटी हम बोलते हैं। वैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक, बहुत पर्टिकुलर। मेजरेबल यानी हाउ मच टाइम, कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। अचीवेबल, क्या ये अचीवेबल है भी या नहीं है। एंड रेलेवेंट, उसकी रेलेवेंस क्या है, क्यों जरूरी है वो। एंड टाइम बाउंड, कि कितने टाइम पीरियड में आप इसको पूरा कर लेंगे। सो द रिसर्च ऑब्जेक्टिव जब आप भी लिखें तब आप ये लिख सकते हैं दैट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव व्हिच आई हैव सेलेक्टेड इज ऑन द थीम ऑफ स्मार्ट, एंड स्मार्ट इज स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant and time bound. This should be mentioned in your research objective. It is very much important. You cannot leave this matter like और को हम पढ़ लेते हैं। Specific का मतलब होता है who, what, where and why. State exactly what you want to achieve. Who, what, where and why you want to do this. Measurable, how we will demonstrate and evaluate this thing. हम इसको प्राप्त तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको evaluate कैसे करेंगे। Achievable, कि कितना challenging है, कितना action oriented है। Relevant, how does this goal is responsible, because आपको एक social responsibility भी निभानी होती है। And time bound, कि कितने time में, क्या इसकी डेडलाइन है, कितने टाइम में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मेकिंग योर गोल स्मार्ट, देखो स्पेसिफिक, आई विल गेट फिट। Now the point is this, I will get fit. तो I will get fit में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। I will get fit. Fit का मतलब है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक है। I will, तो but I will run. To get fit, what I will do? Specific. I will do yoga. I will do walking, or I will do jogging, or I will go for running. So that sort of thing should be specific, that I will run. Measurable. More often. More often means और ऑलवेज और फ्रीक्वेंटली, ये सब फिर वेग है। आप में निश्चितता नहीं है, इसमें बिल्कुल भी निश्चितता नहीं। मोर ऑफन मतलब बहुत ज्यादा, या फिर आप कभी बोलते हैं या समटाइम्स। समटाइम्स का क्या मतलब है, इन अ वीक कितनी बार, तो आपने लिखा है ट्वाइस अ वीक। आई विल रन, स्पेसिफिक हो गया कि मैं दौड़ूंगा फिट होने के लिए। एंड मोर ऑफन मींस ट्वाइस अ वीक, वीक में, हफ्ते में 2 बार दौड़ूंगा। अचीवेबल क्या है, फॉर एटलीस्ट 20 माइल्स, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। सो फॉर एटलीस्ट 2 माइल्स, फाइन। रेलेवेंट, सो आई कैन फिनिश अ मैराथन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को एक मैराथन क्लियर करनी है। सो आई कैन फिनिश अ मैराथन और टाइमली बाय द एंड ऑफ 2024। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या हुआ, अब पहले देखिए स्पेसिफिक, तो अगर मैं फिट रहूंगा, आई विल बी फिट, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। I will run more often. More often again specific नहीं है। I will go for 20 miles in 2 days. Not possible. I can achieve what? I don't know. By the end of what? I don't know. So ये सब कुछ वेग है। आप जब भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे उसमें ये होना चाहिए लिखित में, इट शुड बी रिटन, कि आप क्या अचीव करोगे, कब तक अचीव करोगे, क्या इसकी रेलेवेंस है, क्या इसकी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है, क्या आपकी स्टडीज में इसकी इंपॉर्टेंस है। इट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल।
नाउ कम टू वन मोर पॉइंट, हम जब ऑब्जेक्टिव्स को सिंपली एज अ लेमैन अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यूजुअली नंबर में कम होते हैं, जैसे 1 हो गया या 2 हो गए ज्यादा से ज्यादा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स बहुत ब्रॉड होते हैं और ज्यादातर कम होते हैं, मतलब जैसे 1 होता है, मैक्सिमम टाइम्स 1 ही जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जो ये बताता है कि रिसर्चर एग्जैक्टली इस स्टडी में अचीव करने क्या वाला है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करते हैं, और ये ज्यादा होते हैं नंबर में, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। या फिर हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें प्राप्त करना है उसको हम छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा हो इस चीज से, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब हम एकदम से स्टूडेंट को कुछ बताते हैं उसको चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो मैं आपको ये सीन दिखाना चाहती हूँ सनी देओल का। किस किसने देखा हुआ है ये? बहुत लोगों ने देखा हुआ है ना ये सीन, जिसमें अगर मैं इसको हाइड कर दूं, मैंने देखा है मैडम, मैंने देखा है। मैंने भी देखा है। अगर मैं इसको हाइड कर दूं कि नीचे लिखा है और चड्डा, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वहां इतना मारूंगा, जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। अगर मैं इसको हाइड कर दूं इस लाइन को, और सिर्फ ये ऐसे सीन दिख रहा है आपको उंगली दिखा के सनी देओल उसको बोल रहा है अमरीश पुरी को, अगर सिर्फ यही विजिबल है तो, या चलो इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर लेते हैं, वो शायद क्लियर नहीं हो रहा हो। ये तो क्लियर है सबको, ये तो रटा हुआ है सबको। अगर मैं नीचे की लाइन इसकी हटा भी दूं, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है, ये भी सबको पता होगा, राइट? यस। वेरी गुड। बच्चे हमारे मूवीज तो बहुत देखते हैं, पढ़ाई ना होगी हमसे लेकिन मूवी हमसे वो देखेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक तो सब भर ही देंगे। तारीख पे तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला, मिलता है तो क्या मिलता देवा है? की अदालत में तारीख था, नहीं ओम वो मंजल की तारीख अदालत में तो मिलता है तो तारीख, राइट? सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? आपने इस फिल इन द ब्लैंक को भी भर दिया कि आपको सिर्फ तारीख ही मिल रही है। अब मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 स्लाइड्स आप लोगों ने देखी हैं। 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। तूने अगर बदतमीजी करी चड्डा तो जज के सामने इतना मारूंगा कि वो ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा, और तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। 3 स्लाइड्स हमने देखी है। अपन बात कर रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की, ये मत भूलना, ठीक है? ये मत भूल जाना पिक्चर के चक्कर में कि हमें बात क्या करनी है। अब एक सीन और देखते हैं। चलो, ऐसा नहीं कि मैं सनी देओल की बहुत बड़ी फैन हूं, लेकिन सनी देओल की रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव फिट हो रहे हैं। ये सीन किस किस को याद है? गदर 1 का, गदर 1 मूवी का हैंडपंप सीन सबको याद है ना? मेरे को लगा गदर 2 आई हो तो कहीं भूल गए हो। ये हैंडपंप उखाड़ लिया सनी देओल ने यहाँ पर, फिर ये हैंडपंप से किसी को उठा के पटक दिया हवा में। ये अभी बाहर ही पटक रहा है। वहां पे आपको अमीषा पटेल भी दिख रही होगी ब्लैक ड्रेस में, और अमरीश पुरी ने उसको पकड़ रखा है। दिख रहा है इस स्लाइड में आपको? ध्यान से देखो, अमीषा पटेल है इन अ ब्लैक ड्रेस एंड अमरीश पुरी ने उसको पकड़ रखा है। फिर एक और स्लाइड पे हम जाते हैं। एक और स्लाइड में अब ये गार्डन में पहुंच गया, मतलब सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो अभी भी हैंडपंप हाथ में, लेकिन अभी थोड़ा गार्डन एरिया, फ्लावर एरिया टाइप की जगह आ गई, ठीक है? अब फाइनली क्या हुआ कि सनी देओल और अमीषा पटेल और उनका बेटा साथ में हो गए, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो अपन ने इतनी देर से देखी है रामायण, ये हम क्यों देख रहे हैं? ये हम जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए देख रहे हैं। मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, ये प्लीज माइक म्यूट करिए जिसका भी ऑन है। 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, ओके? वो एक होता है, कभी कभी 2 हो सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, और वो एक से ज्यादा होते हैं। वो एक नहीं होते, वो 2, 4, 5 हो सकते हैं, ठीक है? हमने जितने भी सीन्स देखे अभी रिसेंटली इन स्लाइड्स के द्वारा, वी हैव नोटिस कि यहाँ पर अमरीश पुरी को एक थ्रेट मिली, फिर एक थ्रेट और मिली, एक और उसको चेतावनी दी गई, फिर कोर्ट रूम तक चले गए हम लोग। और कोर्ट रूम में आप पीछे देख रहे होंगे जो मूवी है दामिनी, इसके अंदर जो कौन थी हीरोइन, मीनाक्षी शेषाद्री, ये खड़ी है। तो बेसिकली ये जो सारा सब कुछ सीक्वेंस चल रहा था, ये चल रहा था कि मीनाक्षी शेषाद्री ने जो केस किया हुआ है उसको इंसाफ मिले, ठीक है? हमने ये चीज देखी इसके द्वारा। अब नाउ कम टू वन मोर थिंग, दैट इज गदर 1। ये हैंडपंप उखाड़ लिया गया यहाँ पर, उसके बाद में किसी को उछाल दिया गया, सकीना जो भी है उसको उसके फादर ने पकड़ रखा है, फिर और हैंडपंप उखाड़ दिया गया, और फाइनली वो अपने परिवार को लेकर इंडिया के लिए प्रस्थान कर रहा है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग अपना क्या ब्रेन यूज करके मुझे इतना सा समझा पाएंगे, आपके समझ में आया कि इसमें स्पेसिफिक क्या है और जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लेट मी टेल यू, जनरल ऑब्जेक्टिव गदर 1 के इन जितने में हमने 3-4 फोटोज देखी हैं, इसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे मेरी फैमिली को, मींस सनी देओल को अपनी फैमिली को लेकर वापस जाना है इंडिया। दैट इज द जनरल ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव था केवल, लेकिन उसके लिए उसने 3-4 हरकतें करी, धमकी दी, हैंडपंप उखाड़ा, 2-4 लोगों को इधर उधर फेंका, पीटा पटाई करी, जो भी करा, यानी वो स्पेसिफिक वर्क किया उसने। ऐसे ही अगर हम आगे दामिनी वाली मूवी में कोर्ट केस की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव उसका क्या था? जनरल ऑब्जेक्टिव उसका था कि दामिनी मूवी में जो मीनाक्षी शेषाद्री ने कोर्ट केस कर रखा है, उसमें उसको न्याय मिले, और सनी देओल इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ एडवोकेट, और जो दूसरी पार्टी है अमरीश पुरी, ही वाज आल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ द एडवोकेट। दोनों अपोजिट एडवोकेट्स हैं, मतलब राइवल्स हैं दोनों। तो बेसिकली चल क्या रहा है यहाँ पर? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था? जो तीनों चारों बोली गई सनी देओल के द्वारा अमरीश पुरी को, वो सब स्पेसिफिक है, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरल ऑब्जेक्टिव है टू गिव द राइट्स टू दैट लेडी जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, उन्हें कोर्ट केस जिताना। दैट वाज द जनरल ऑब्जेक्टिव। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है, बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है केवल, जो हमारे टाइटल और रिसर्च प्रॉब्लम से कनेक्ट कर जाता है। उस एक जनरल ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अब जब हम छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि अभी हमने इन 2 क्लिपिंग से देखे। जनरल ऑब्जेक्टिव, अपनी फैमिली को वापस इंडिया लेके जाना, XYZ हैंड पर उखाड़ना, ये करना वो करना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बाय अचीविंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू आर अचीविंग? योर जनरल ऑब्जेक्टिव। सेम थिंग हैपेंस इन द रिसर्च वर्क। आप जैसे ही अपना एक रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हो, आपका टाइटल डिसाइड होता है। टाइटल डिसाइड होते ही आपको ये ध्यान करना पड़ता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और जब जनरल ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है तो आप उस एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। तो जब भी आप रिसर्च वर्क करें तो कृपया करके ये ध्यान रखें कि आपका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको जस्टिफिकेशन में इजी रहेगा ये, जब भी वाइवास देंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू कि जनरल ऑब्जेक्टिव तो ये था और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये है। अब हम इसको थोड़ा सा और एलोब्रेशन में जाते हैं। देखिए, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग फील्ड्स के हैं, सबके ऑब्जेक्टिव सिर्फ जनरल और स्पेसिफिक तो एक जनरल उसमें है, लेकिन आपको लिखना पड़ता है कि ये रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, ये रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है, ये रिसर्च प्रिडिक्टिव है, ये जो भी है। इसमें भी मैंने एक सीन दिया है, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, राइट? नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। एक होता है आपका एक्सप्लोरेटरी, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है एक्सप्लेनेटरी, एक होता है प्रिडिक्टिव, एक होता है डायग्नोसिस्ट और एक होता है कंपैरेटिव। ठीक है, आप जब भी लिखते हैं आप लिखते हैं दिस रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव, दिस रिसर्च इज एक्सप्लेनेटरी, दिस रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी, दिस रिसर्च प्रिडिक्टिव, दिस रिसर्च कंपैरेटिव। ठीक है, हम अब बीच बीच में से चालू करते हैं। जब हम प्रिडिक्टिव की बात करते हैं, प्रिडिक्टिव का मतलब होता है प्रिडिक्ट्स फ्यूचर आउटकम्स और इवेंट्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा सैंपल्स और ट्रेंड्स। आप में से जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इन सब पे बिलीव करते हैं, उन सबको ये पता होगा कि ये प्रिडिक्शन होता है, फोरकास्टिंग होती है। तो जब भी हम कोई ऐसी रिसर्च करते हैं जो कि फ्यूचर बताने वाली है, फ्यूचरिस्टिक है, राइट, हमें नहीं मालूम है क्या होने वाला है, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी से देख रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी से, जन्म पत्री से देख रहे हैं और किसी का भविष्य हम बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हम आज का जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो कि उनकी रेखाएं हो सकती हैं, जो कि उनका जो भी लगन वगन जो भी बनता है वो हो सकता है, वो हो गए प्रिडिक्टिव। तो क्या हम में से कोई प्रिडिक्टिव कर रहा है? नो, वी आर नॉट डूइंग अ प्रिडिक्टिव रिसर्च वर्क। फिर आता है डायग्नोसिस। हम लोग डॉक्टर नहीं है, मतलब वी आर नॉट द मेडिकल डॉक्टर्स, तो जो हम डायग्नोस कर रहे हैं हम डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस तो आपको पूरा डायग्नोस सिस्टम से जाना पड़ेगा जो मेडिकल टर्म है, तो हम डायग्नोसिस रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास बचती क्या है? हमारे पास बचती है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एंड कंपैरेटिव। ये चारों हम करते हैं। ठीक है, अब चारों में से कई बार तो क्या होता है, हम 2 एक साथ कर लेते हैं, कई बार हम एक पे ही फोकस रहते हैं। अब आते हैं हम सबसे इजी के ऊपर। सबसे पहले आते हैं एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोर्स अ प्रीवियसली unstudied topic, issue, phenomena, aims to generate ideas or hypothesis। देखिए ध्यान से सुनिएगा। Explore a previously unstudied
कोई भी ऐसी स्टडी जो ये एक्सप्लोर कर रही है, वो ऐसा टॉपिक पर आप ले रहे हैं जो कभी पहले एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है, कभी आज से पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया, उस टॉपिक पे आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है, या उस आइडिया पे आप काम करने जा रहे हैं, तो वो कहलाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फाइन है। अब नाउ गो टू डिस्क्रिप्टिव. Descriptive describes the characteristics feature of a particular population of a group or a group. जो भी आप सैंपल साइज लेंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप करने जा रहे हैं. फिर आता है एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड सीक्स टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या जहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल क्या इंपैक्ट है, क्या इफेक्ट है, वो हो गई आपकी एक्सप्लेनेटरी. उसके बाद आप आ जाते हैं लास्ट पे कंपैरेटिव. कंपैरेटिव मतलब टू और मोर ग्रुप्स ऑफ फिनोमेना टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, तो वो हो जाती है कंपैरेटिव रिसर्च, ठीक है. अब इन चारों पे अगर हम बात करें, और मैंने आपको ऊपर दिया हुआ स्क्रीन पे, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है. आप सबको ध्यान होगा बाहुबली 1 बहुत हाइप्स पे गई, सब लोगों ने वो मूवी देखी, किसी को नहीं बिलीव था कि एंड इसका, क्योंकि इससे पहले कोई मूवी में सब में डी एंड आता था, डी एंड. Okay, this was the only movie, in fact the first movie I think, जिसमें एंड नहीं आया, एंड की बजाय ये सीन आया, कट्टप्पा ने बाहुबली को मार दिया, फाइन. एंड वी ऑल वर इन शॉक, द ऑडियंस वर लाइक इन शॉक, ये क्या हुआ, बिकॉज हमने जब बाहुबली देखा हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ये होगा, ठीक है. अब ये हो गया. अब बाहुबली 2 देखने हम सब फिर भागे. क्यों भागे? क्योंकि रहस्य ये था कि why कट्टप्पा killed बाहुबली. That's the curiosity which they have generated. अब मुझे आप में से आप लोग खुद अपने एक बार ब्रेन यूज करके सोचिए कि ये एक्सप्लोरेटरी है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये डायग्नोसिस है, ये प्रिडिक्टिव है, ये कंपैरेटिव है, ये कौन से टाइप की ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है आपका? आप सोचिए इस बात को कि इसमें कोई ऑब्जेक्टिव अगर हम सोच रहे हैं तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है. अगर मैं इसी पे आपको दे दूं कि ये आपका रिसर्च का टॉपिक है, अब आप मुझे बताइए कि ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव कौन सा है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी क्या कर रहा है, एक्सप्लोर्स प्रीवियसली अनस्टडी टॉपिक. डिस्क्रिप्टिव क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स. एक्सप्लेनेटरी क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बताओ. प्रिडिक्टिव क्या कर रहा है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करो. डायग्नोसिस क्या कर रहा है कि डायग्नोस करो. और कंपैरेटिव क्या कर रहा है, कंपैरेटिव करो. तो हमारे पास आंसर आता है कि कंपैरेटिव तो ये है नहीं, of course it is not comparative. predictive future outcomes or events based on the existing data or samples, ये predictive भी नहीं एक्सप्लोरेटरी है. मैम. और ये एक्सप्लोनेटरी है. एक्सप्लोरेटरी. अब now listen to me. predictive क्यों नहीं है? देखिए इसी में अगर आप गूगल पे जाके मीम्स देखेंगे ना, इसी के कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो प्रिडिक्टिव में बहुत सारे मीम्स आप अभी भले उठाकर देख लीजिए. कट्टप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि बाहुबली उससे रोज कैंडी क्रश खेलने के लिए कह रहा था. कट्टप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी पूरी मैगी का पैकेट खा गया था. ये प्रेडिक्टिव हो गई. ये प्रेडिक्टिव क्यों हो गई? क्योंकि आप कुछ भी प्रेडिक्शन दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, बस यू आर प्रेडिक्टिंग इट, राइट. इस टाइप के मीम्स हम लोगों ने बहुत देखे हुए हैं. तो ना ही तो ये कंपैरेटिव है, ना ही ये प्रेडिक्टिव है, ना ही ये डायग्नोसिस है, और ना ही ये एक्सप्लेनेटरी है, और ना ही ये डिस्क्रिप्टिव है. ये है एक्सप्लोरेटरी. क्यों है? क्योंकि ये अनस्टडीड मैटर है. आप ये अनस्टडीड टॉपिक है, ये अनस्टडीड फिनोमेना है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. ये तो सिर्फ उसको पता है जिसने इस मूवी को लिखा है. आप और मैं तो ऑडियंस है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में. इसीलिए इसको हमने कहा है इट इज वी आर एक्सप्लोरिंग अ प्रीवियसली अनस्टडीड टॉपिक. इसीलिए ये है एक्सप्लोरेटरी. तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फर्स्ट रिसर्च उठाएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेटरी, वो बहुत सीरियस होता है और वो बहुत मुश्किल भी होता है. इसीलिए मैक्सिमम टाइम जो रिसर्चर्स होते हैं वो उठाते हैं डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एंड कंपैरेटिव. ये 3 होती हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं. आप प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा. आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं या आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं मैक्सिमम टाइम, या फिर अगर आपने कोई टॉपिक ऐसे लिया है, मान लो कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट बैंक, तो ये कंपैरेटिव स्टडी हो गई, तो आप इसको लेंगे फिर कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव में, राइट. तो मैक्सिमम टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट, क्वेश्चंस वी विल टेक लेटर ऑन प्लीज. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करते हैं तो वो हमेशा एक फ्रेश रिसर्च होती है जिसके
जो टॉपिक्स हैं या जो टाइटल्स हैं वो कभी भी पहले नहीं पढ़े गए हैं और बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च होती है। तो आप कोई जैसे टॉपिक उठा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसके ऊपर पहले रिसर्च की जा चुकी है या नहीं की जा चुकी है। अगर कोई रिसर्च उसके ऊपर पहले नहीं की गई है एंड यू आर द फर्स्ट वन हु इज गोइंग टू रिसर्च ऑन दैट टॉपिक, तो इट विल कम इनटू द explanatory. Otherwise it will come into descriptive, explanatory, or if it is comparative between two and more variables, then it will come into the comparative study. Questions we will take later, please. Now we are talking about that having decided what to study, research topic, and knowing why you want to study the problem statement, and you have to formulate the study objectives accordingly. If we break down these general objectives, small and logical connected parts, then we get the specific objectives which we have already discussed. And now I'm going to show you one more thing, one more video. ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ऊपर की फर्स्ट लाइन में बोला रिसर्च टॉपिक एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Please be focused. Having decided what to study, यानी research objective, and knowing why you want to study, यानी problem statement, then you can formulate the objectives. Now let's start this video. If it will work, I'll show it to you. शिव जो पाप विनाशक है, जिन्हें किसी का भय नहीं। हम पीके हो पीके हमारे मोटवा दो, मैं कौन सा मोटवा? स्पेसशिप का रिमोटवा। स्पेसशिप मैं बताया आपको, अभी बोले तो नहीं नहीं बोला जाए अपने रिमोट दिला देगा तो हम घर कितना चला जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? मेरे जान मेरे छोटे छोटे बच्चे मालूम है हमका, अरे जीव काटने के लिए इतने छोटे में नहीं हो, अकेले रह सकते हैं घर में। आप अपना रिमोट दिला दो, फिर जाओ अपने फैमिली के पास। भगवान है का the dance of Shiva, the fearless. So this was a small video which we saw from PK movie. आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ नोट किया? इस मूवी के इस सीन के अंदर दो पार्टीज हैं, एक है आमिर खान और एक व्यक्ति है जो शिवजी का रोल प्ले कर रहे हैं किसी नाटक के अंदर, राइट? नाउ द प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव? इस सीन से क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं क्या कि इसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और इस पर्टिकुलर सीन से क्या आप फॉर्मुलेट कर सकते हो कि हमारा प्रॉब्लम क्या था इसका और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए था इसका? सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो इसके अंदर ध्यान देने वाली थी वो ये थी कि जो आपका ये क्लिपिंग था इसके अंदर जब हमने पहली लाइन पढ़ी थी कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। इस क्लिप को अगर आप देखोगे तो इसमें रिसर्च टॉपिक ही क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि एग्जैक्टली मैटर क्या है।
अब आप और मैं ऑडियंस, इसलिए हमको ये समझ में आ रहा कि मैटर ये है कि आमिर खान का कोई रिमोट खो गया है जो उसको स्पेसशिप पे ले जाएगा, उसको वो चाहिए, लेकिन जिस पार्टी से वो बात कर रहा है उस पार्टी को ये बात नहीं पता है, राइट? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और इसका फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टडी क्या होगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इसके अंदर ये क्लियरिटी नहीं है बिटवीन द टू पार्टीज, द कम्युनिकेशन व्हिच इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द एग्जैक्ट टॉपिक, बोथ द पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग. One party is saying something else, the another party is getting something else. This is the main issue. So the communication skill is the basic problem between these two parties, because I'm asking something else and he is telling something else. I'm talking about my problem and he is saying about मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, you know, मुझे घर जाने दे. So he is talking about his problem and Amir Khan was talking about his problem. So what is exactly going on into this scene? There is a confusing mind state. There is a lack of communication between the two parties. अब अगर मान लीजिए ये the same thing happens in your research work. अब मान लीजिए आपने रिसर्च का टाइटल फाइनलाइज कर लिया है और आपने जो फाइनलाइज किया है वो टॉपिक, वो आपके गाइड को नहीं समझ में आ रहा है या जो इंटरव्यू लेने आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा. What you will do in that case? मान लीजिए आपने अपना ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज कर दिया, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने गाइड के पास अपना लेकर गए आप सिनॉप्सिस या जो भी है अपनी गाइड की सलाह मशवरा से, देन व्हाट यू विल डू? दैट्स माय क्वेश्चन. आप कुछ नहीं कर सकते. इसका मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो आपका हाइपोथेसिस, आपका रिसर्च का पूरा डेटा, आपका रिसर्च का पूरा चैप्टराइजेशन, सब कुछ गलत होगा. आपको जो पहला इंटरव्यू पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, पहले तो टाइटल चलो वो आपने निकाल लिया कि ठीक है भाई रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है भाई. रिसर्च ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो आपका जितना भी स्ट्रक्चर है थीसिस का वो सारा हिल जाएगा. प्लस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप रिसर्च सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि आपको डॉक्टर लगाना है, आप रिसर्च इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू वांट कि ये साइटेशन पे जाए, लोग इसे पढ़े. आप लोगों को बहुत लोग अभी तक बता चुके होंगे कि इट विल गो टू शोध गंगा, बट लेट मी टेल यू दिस आल्सो, इट विल नॉट गो टू ओनली शोध गंगा, इट विल गो टू द 1000 प्लेसेस, क्योंकि इसी में से आप लोगों को अपने रिसर्च पेपर्स निकालने हैं. तो मुझे ये बताइए कि आप कितना रिपीटेटिव काम करना चाहेंगे, आप कितना, यू हैव लिमिटेड टाइम, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सो प्लीज ट्राई टू फोकस कि आप रिसर्च टॉपिक ऐसा उठाएं, उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आप ऐसे लिखें कि उन 5 रिसर्च टॉपिक में से ही आप अपने रिसर्च पेपर्स निकाल पाए. समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर ये कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर, बिटवीन यू एंड द एक्सटर्नल्स हु आर कमिंग टू टेक योर इंटरव्यू, ट्रस्ट मी, आपकी सिनॉप्सिस को रिवीजन पे डाल दिया जाएगा कि इसको रिवाइज करके लेकर आइए. आगे तो वो पहुंचेंगे ही नहीं, हाइपोथेसिस वो तो सब गया अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव ही गलत है. तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है वो देखनी है रेलेवेंसी ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि वो रेलेवेंट कितना है. और दूसरा, आप प्लीज फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा. इतनी स्टडीज हम लोग करते हैं, सब लोग एक ही तरीके से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर देते हैं. मैं आपको बता रही हूँ अभी कि अभी किस तरीके से उसको फ्रेम करना है. तो हाउ टू राइट अ रिसर्च ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव की. ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कैसे करेंगे? आप सिर्फ गूगल रिसर्च पे, गूगल के ऊपर डिपेंड मत रहिए, जितने भी सर्च इंजन हैं सारे छान मारिए. आप रिसर्च गेट पे भी जाइए, आप गूगल स्कॉलर्स भी देखिए, आप गूगल में ऑफ कोर्स सर्च कर ही रहे हैं. जस्ट गो थ्रू एज मच एज यू कैन गो. आप कुछ मत देखो जितनी देर आप, प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ टीचर एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग ऑन द रियलिस्टिक थिंग्स. यहाँ पे मैं सिर्फ एक लेक्चर डिलीवर नहीं करने आई हूँ. माय पर्पस इज, आप पेपर तो क्लियर कर लेंगे कोर्स वर्क का, लेकिन इसे सीख क्या रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो rather than seeing the tabs of the WhatsApp, Facebook, LinkedIn and XYZ, better you take your laptop, take your mobile, n number of tabs आप उसमें खोलिए. आप उसमें रिसर्च गेट खोलिए, आप उसमें एकेडमी EDU खोलिए, आप उसमें गूगल स्कॉलर खोलिए, आप जो खोलना चाहते हैं, जितने खोलने चाहते हैं वो सारे के सारे आप उन टैब्स को खोलिए. और उन टैब्स में जो भी फर्स्ट आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी फर्स्ट, पेपर पेन लेकर बैठिए कृपया करके, जो भी फर्स्ट आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, एंड मेरे को फिर बोलना पड़ रहा है, रिसर्च सुपरवाइजर का काम नहीं है, इसको माइंड में घुसा लीजिए. सुपरवाइजर के हो चुकी रिसर्च ऑलरेडी, ओके. ये आपका भविष्य है, आपकी थीसिस है, आपका रिसर्च है, तो टॉपिक भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए. ऑफ कोर्स सुपरवाइजर की हेल्प लीजिए, उनकी सहमति लीजिए, बट प्लीज ट्राई टू फोकस जिस चीज से आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे इन फ्यूचर. सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन अ रिसर्च टॉपिक जो आपको क्लिक कर रहा है.
अब मान लीजिए आपको क्लिक कर गया कि मेरे को तो इस टॉपिक पे करनी है XYZ, मान लो मेरे को क्लिक कर गया मुझे रूरल टूरिज्म पे करनी है, सपोज फॉर एन एग्जांपल मुझे क्लिक करता मुझे रूरल टूरिज्म पे PhD करनी है, फाइन। नाउ रूरल टूरिज्म पे आप क्या सर्च करोगे गूगल पे, व्हाट यू विल बी गोइंग टू सर्च। देखिए आप ये मत सोचिएगा हम लोग खुद कि एक आप लोगों ने सुना होगा कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, ये समझ लेना इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होती है, ठीक है। इट्स बेटर कि आप देखें चीजें, जितनी चीजें आप देखेंगे उतनी नई चीजें आपको पता चल जाएंगी कि ये काम हो चुका है, ये काम नहीं हुआ है, इस काम में इस ऑब्जेक्टिव पे बात की गई लेकिन ये ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया गया। आप सर्च करेंगे रिसर्च पेपर्स ऑन रूरल टूरिज्म, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, आपके जो भी मन में आया टॉपिक वो आपके ऊपर है। रिसर्च पेपर्स ऑन रूरल टूरिज्म मैंने ये डाल दिया गूगल पे, मैंने ये डाल दिया रिसर्च गेट पे, मैंने ये डाल दिया गूगल स्कॉलर पे, जहां जहां पे भी जिस रिसर्च सर्च इंजन पे मैं डाल सकती हूँ मैंने सब जगह पुट कर दिया। रिपोर्ट्स ऑन रूरल टूरिज्म इन राजस्थान मैंने ये भी डाल दिया, फाइन। रिपोर्ट्स ऑफ रूरल टूरिज्म इन XYZ स्टेट, अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आप इनको खोलिए, उनको अगर वो कॉपी कट पेस्ट हो सकती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो सकती है तो पेन पेपर पे नोट डाउन करिए। उन सब रिसर्च पेपर्स के, उन सब थीसिस के आप ऑब्जेक्टिव्स उठा उठा के एक पेपर पे लिखते जाइए, या आप कॉपी कट पेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट फाइल उसकी बना लीजिए अलग से, ठीक है। जब आप इस पूरे कार्रवाई को कर लेंगे, मान लो आपने 10 पेपर्स खोले, तो आप ये तो मान के चलिए क्योंकि आजकल प्लेजरिज्म है बहुत ज्यादा, तो 10 के 10 पेपर के ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकते, सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग आएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने 10 पेपर खोले और हर पेपर के अंदर अगर 5 ऑब्जेक्टिव्स है, या हर थीसिस में अगर 5 ऑब्जेक्टिव्स है, तो आपके पास में 50 ऑब्जेक्टिव्स है इस टाइम पे। एट दिस मोमेंट यू हैव 50 ऑब्जेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ योर रूरल टूरिज्म, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनमें से कितने रिपीटेटिव है, क्योंकि कई बार क्या होता है, माय नेम इज सीता, सीता इज माय नेम, ठीक है, और आई एम सीता, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। माय नेम इज सीता, आई एम सीता, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो कई बार यही होता है कि आप ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहने देते हैं लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो भी वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज दिस, आपको तो नुकसान है ना, क्योंकि आपके पास तो कंक्लूजन में एक ही चीज आ रही है कि आई एम सीता, तो माय नेम इज सीता, यानी आपके 50 में से 2 ऑब्जेक्टिव्स तो क्या कर गए, मैच कर गए। तो आपको करना क्या है, आपको ये कंक्लूड करना है कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है इनके अलावा अब मैं क्या ऑब्जेक्टिव कर सकता हूं। यू हैव टू फोकस ऑन दैट एंड यू हैव टू ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बाहर से उठा के कुछ ले आएंगे, बट आपका यही होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, जहां पे आप ये देखना चाहते हो कि हम लोगों को एग्जैक्टली इसके अलावा क्या करना है, या इसने क्या छोड़ दिया जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज करिए। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो 1 से 2 होने चाहिए जनरल। ये मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैक्सिमम टाइम्स रिसर्च में ये नहीं होता है। रिसर्च में आप लिख देते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव और 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, कई लोग पागलों की तरह 10, 12, 15 भी लिख देते हैं, वो गलत है, मत लिखिएगा, ठीक है। मैं ऑनेस्टली आपको ये बता रही हूँ, आप जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखें प्लीज उसमें 2 टैब्स बनाएं। एक बनाएं जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसमें एक कोशिश करें एक ही लिखे, नहीं हो रहा तो 2 लिख सकते हैं, और आप दूसरा बनाएं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय रिसर्च स्टडी इज 1, 2, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय रिसर्च स्टडी 1, 2, 3, 4, 5। That's it. That should be the formation of your research objective, first thing. Second thing, आप जाइए, जब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जब भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना, ऑब्जेक्टिव रिसर्च, मैंने वापस बोला रिसर्च, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो मतलब खोज रहे हो, यू आर सर्चिंग अगेन। तो हम जब सर्च करते हैं तो अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, टू फाइंड आउट, करते हैं नहीं करते। मैक्सिमम थीसिस में देखना, जब ये अगर आप करोगे ना एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, आप 100% देखोगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स जिन्होंने भी फॉर्मेट कर रखे हैं ना, सब ने टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, टू एनालाइज, सब यही लिखते हैं, है ना। आप लिखिए, ये गलत नहीं है, लेकिन आप एक में लिख दीजिए। जैसे एक ऑब्जेक्टिव लिख दिया आपने, टू फाइंड आउट द स्कोप ऑफ रूरल टूरिज्म इन राजस्थान, ठीक है, ओके फाइन। एक आपने 2 से लिख दिया, इट्स ओके। बट अब सारे जितने भी वो आप चारों पांचों 2, 2, 2, 2, 2, ये गलत है। डोंट राइट इन दैट वे। व्हाट यू कैन से, आप लिख सकते हैं कंपेयर, डिटरमाइन, इवैल्यूएट, यू नो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। जस्ट टू फाइंड आउट मत लिखिए, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, अरे नहीं, टू कंपेयर, टू एक्सेस, टू डिटरमाइन, टू इवैल्यूएट, टू इन्वेस्टिगेट, यू नो टू हाईलाइट,
ये तरीके के जो वर्ड्स हैं, दिस टाइप ऑफ एक्शन ओरिएंटेड वर्ब्स या हम वर्ड्स जो बोलते हैं, उनका सिलेक्शन आप करिए व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग एन ऑब्जेक्टिव. प्लीज डोंट जस्ट राइट टू फाइंड आउट एक्स, टू फाइंड आउट वाई, टू फाइंड आउट दिस. नो, टू फाइंड आउट, फॉर एन एग्जाम्पल, टू फाइंड आउट द स्कोप ऑफ रूरल टूरिज्म इन राजस्थान. ठीक है, to access the opportunities available in Rajasthan of rural tourism. Fine. Determining, you know, या determine और to determine भी कर सकते हैं. To determine the future opportunities hidden in Rajasthan for rural tourism. ठीक है, अब ये क्या हो गया? आप कैसे भी उसको स्टार्ट करें, but at least there's no repetition. तो प्लीज to find out हर जगह नहीं चिपकाना है. थोड़ा सा be creative with your language. अपने sentences को हैवी बनाइए. जब वो हैवी बनते हैं तो जो सामने वाला उसको पढ़ रहा होता है उसको लगता है कि हाँ, इस रिसर्च में कुछ दम है. ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं उसके अंदर हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि, वापस रिपीट कर रही हूं, जनरल ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉलो करता हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप जनरल ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं. तो जो भी जनरल ऑब्जेक्टिव हो उससे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कनेक्टेड होना चाहिए. देयर शुड बी नो डिफरेंस कि जनरल ऑब्जेक्टिव इज टॉकिंग अबाउट रूरल टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज इन राजस्थान एंड चैलेंजेस, बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बोल रहा है वी आर मेकिंग कंपैरिजन इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान रूरल टूरिज्म. कोई मैच नहीं है. या तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव में भी इसको इंक्लूड करें या फिर आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हटा दें. तो देयर शुड बी अ मैच, देयर शुड बी अ similarity. Okay, is that clear? Now formulating के अंदर हम देखते हैं, देखो छोटी सी और चीज इसके अंदर है. Identify the research problem, review the past studies related to the subject, identify the research gap of the current study, and it should be covered on the review of literature, theoretical, methodological या conceptual हो सकता है. Define the research question on the behalf of the research gap, or revise or relate the research problem based on the research questions and gaps. Identify and write the general and specific objectives and incorporate the objectives into the study. देखिए एक चीज इसमें और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप जब भी रिसर्च वर्क करें हमेशा रिसर्च गैप जरूर आइडेंटिफाई करें. जब भी आप रिसर्च गैप लिखते हैं तो आपकी दो तीन चीजें हैं. देखिए, एक होता है रिसर्च क्वेश्चन, एक होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और एक होता है आपका रिसर्च गैप. ये तीनों चीजें होनी चाहिए आपकी स्टडीज में. ये तीनों चीजें हमेशा होनी चाहिए. रिसर्च गैप भी होना चाहिए, और रिसर्च गैप मैक्सिमम टाइम डिपेंड करता है ऑन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बिहाफ पे रिसर्च गैप बनाया जाता है. इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप रिसर्च गैप लिखेंगे आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिसर्च गैप लिख पाएंगे. उससे पहले आप रिसर्च गैप नहीं लिख सकते हैं. Now what is the difference between, please mute your mic. What is the difference between research objectives and aim? देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है रिसर्च एम के अंदर और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अंदर. एम जो होते हैं, नाजिया जी प्लीज जिसका माइक ऑन है म्यूट कर लीजिए. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च एम में एक बहुत स्पेसिफिक सा डिफरेंस होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो रिसर्च एम जो होते हैं वो थोड़े से ब्रॉड गोल्स होते हैं, एक तरीके से आउटलाइन दे देते हैं आपको, और जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मोर ऑब्जर्वेंट होते हैं, मोर एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मोर फोकस्ड होते हैं. बस इतना ही डिफरेंस है. बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर है नहीं, और कोई आपसे पूछेगा भी नहीं. बट ये मैंने इन जनरल आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के पर्पज से किया है. अब आपके पास में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके कोर्स वर्क में, वो कुछ ऐसे हो सकते हैं. आर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल? क्या आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकते हो? यस, कर सकते हैं. कैन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स चेंज ड्यूरिंग द स्टडी? यस, पॉसिबल है, क्योंकि आप स्टडी एक ये तो है नहीं कि आपने आज चालू करी और कल खत्म हो गई. स्टडी आप लंबे समय के लिए कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं. आर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स द सेम एज हाइपोथेसिस? नो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं और हाइपोथेसिस अलग होती है, लेकिन दोनों कोरिलेटेड होते हैं. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पे आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है. ठीक है, सो ये था हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन. अब हम आते हैं, छोटी सी एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया. हम लोगों ने ये देख लिया कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. लास्ट पॉइंट एट दैट, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव. राइट, हमने वापस से कुछ मूवीज के एग्जांपल्स लिए. देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं मूवीज बहुत देखती हूँ. एक्चुअली वैसे तो मैं देखती हूँ, बट ऑनेस्टली बताऊं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो आपके माइंड में रह जाएंगे. अगर मैं थ्योरेटिकल कुछ और लेती तो वो दिमाग में रहता नहीं है. मूवीज क्योंकि डेली लाइफ का पार्ट होता है तो याद रह जाती हैं चीजें. अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? चक दे इंडिया, बहुत बढ़िया मूवी. भाग मिल्खा भाग,
बढ़िया, दंगल बढ़िया, फाइन। अब मान लो ये सबके प्रोड्यूसर आप हो, आपने बनाई है सारी पिक्चरें। ना चलो, 3 इडियट्स वेरी गुड, मांझी जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, याद है वो वाला डायलॉग नसरुद्दीन शाह का, सॉरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जो वो पहाड़ को तोड़ देता है पूरा, ठीक है, मांझी। हाँ हाँ हाँ। फिर इंग्लिश जिसके अंदर श्रीदेवी एक हाउसवाइफ होती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, बच्चे बड़े मॉडर्न, पति बड़ा मॉडर्न, वो कॉर्पोरेट में है, फिर ये जाती है विदेश, इंग्लिश सीखती है, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करती है, स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। मैरी कॉम भी आप सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है, ये सारी मूवीज हमने देखी है, गुड। अब हम एक और मूवी का नाम ले रही हूं मैं, ये है गो गोआ गॉन। सैफ अली खान और पता नहीं कोई हीरो हैं 2-4 अच्छे, और उसके नीचे एक और मूवी जो बहुत ही हिट हुई है अभी, एनिमल, ये भी सबने देखी होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम और जाते हैं एक मूवी पे जिसमें हम बोलते हैं बाहुबली 1, बाहुबली 2, और उसके नीचे हमने लिखी है उड़ता पंजाब। ओके, अब हम वापस से फर्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। अगर अब प्लीज आप लोगों को बस बोलना नहीं है, माइक मत ऑन करिएगा, नहीं पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपका रिसर्च टॉपिक है, ये तीनों पिक्चर्स, ये तीनों आपने बनाई है, ये आपकी थीसिस है, सपोज चक दे इंडिया रिसर्च टॉपिक है आपका, दंगल आपका रिसर्च टॉपिक है, भाग मिल्खा भाग आपका रिसर्च टॉपिक है। तो आप लोगों में से जो लोग फील कर रहे हैं कि हाँ इट इज अ गुड टॉपिक, हम कर सकते हैं ऐसी चीजों पे काम और ये अच्छा है हमारे लिए, वो अपने स्क्रीन पे हाथ रेस कर सकते हैं। फाइन, नाउ वी टॉक अबाउट मैरी कॉम, 3 इडियट्स, इंग्लिश। इसके ऊपर भी आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ इट इज ऑल्सो गुड। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट एनिमल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गो गोआ गॉन, जो भी मूवी है ये, इसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो इनमें से आप में से कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि हाँ हम एनिमल जैसी मूवी बनाना चाहते हैं या ऐसा रिसर्च वर्क करना चाहते हैं जैसे कि एनिमल मूवी थी। फाइन, अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि मैम आपके साथ में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है देखो, रिसर्च वर्क आपके विजन पे डिपेंड करता है। रिसर्च मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा, रिसर्च इट्स योर विजन, इट्स कंप्लीट योर विजन। आपके सुपरवाइजर का भी कोई लेना देना नहीं, आपका विजन कहाँ दौड़ रहा है ना, रिसर्च वैसी हो जाएगी। अब आप कहोगे कि मैम आपका जो विजन जो अब तक हमको लगा वो ये है कि या तो आपको फनी मूवीज अच्छी लगती हैं क्योंकि आपने 2 क्लिपिंग दिखाई, दोनों फनी थी, ठीक है, या फिर आप सनी देओल की बहुत बड़ी फैन हो क्योंकि आपने जो दिखाई क्लिपिंग वो सनी देओल की थी। फाइन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मुझे कि मैम मुझे लगता है कि आपको जैसे मैरी कॉम है या चक दे इंडिया है या भाग मिल्खा भाग है या दंगल है या सुल्तान है या इंग्लिश है या मांझी है, आपको ऐसी मूवीज अच्छी लग रही हैं जो कि मोर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या इंस्पिरेशन से रिलेटेड है या कोई एक मैसेज दे रहे हैं समाज को, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा फाइटिंग मूवीज शायद पसंद नहीं है, इसीलिए आप ये बोल रहे हो, राइट, क्योंकि फाइटिंग मूवी जैसे एनिमल, इससे ज्यादा सुपर फाइटिंग मूवी तो कोई भी नहीं है। तो फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि फिर मुझे बाहुबली क्यों अच्छी लग रही है? Why I like बाहुबली 1, why I like बाहुबली 2? बिकॉज उसमें भी बहुत मार पीट काटा कुटी सब कुछ था, बहुत फाइट था, बहुत फाइटिंग सीन थे, सब कुछ था उसके अंदर बाहुबली में भी, ठीक है, खूब धमकी वमकी सब कुछ था उसके अंदर भी। तो फिर why I am liking बाहुबली 1 and बाहुबली 2 and why I am not liking एनिमल, why I am not like गो गोआ गॉन, why I am not liking पंजाब उड़ता पंजाब, why I am not liking all these things? ये क्वेश्चन क्या आप लोग के माइंड में आता है? आ रहा होगा। उसका कारण है कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च वर्क की जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च वर्क जब भी आप बोलते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंस के अंदर आपका जो रिसर्च वर्क है वो अल्टीमेटली सिर्फ आपके काम में नहीं आ रहा है। कीप दिस इन योर माइंड, योर रिसर्च वर्क इज योर रिसर्च वर्क, यू विल विद अ डॉक्टरेट, ये थीसिस भी आप ही की है, लेकिन ये जो रिसर्च वर्क है ये जैसे ही बाहर आएगा, चाहे वो एक रिसर्च पेपर के फॉर्म में आ रहा है चाहे वो थीसिस के फॉर्म में आ रहा है, इट विल गो टू द ऑनलाइन मीडिया, it will go in the library, it will go in thousands of hands in the future generation, ठीक है, या जो इससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे। तो आपका जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च टॉपिक है that must to be, first thing that must be broad, first thing, second thing वो फ्यूचर जनरेशन को मोटिवेट कर सके, फ्यूचर जनरेशन या अपकमिंग जो भी रिसर्चर्स हैं उनको उससे कुछ मिल सके, या फिर वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल कर रहा हो, या वो इस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो किसी भी सोसाइटी को या फोर्थकमिंग रिसर्चर्स को, जिसको पढ़ के उसको कुछ हासिल हो सके, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवीज लाइक चक दे इंडिया,
जिसमें आप गर्ल्स को इंस्पायर कर रहे हो, वो भी हॉकी के लिए, जिसमें आप दंगल, जिसमें आप 4 बच्चियों को इंस्पायर कर रहे हो टू बी इन स्पोर्ट्स, जिसमें बॉयज हैं सिर्फ, ठीक है, भाग मिल्खा भाग, जिसमें आप दिखा रहे हो कि रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी एक बंदा, एक सरदार फाइट करता है और वो अवार्ड्स जीतता है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के। मैरी कॉम, जिसमें एक लेडी है जिसके जो एक गांव में रहती है, जिसके 3 बच्चे हैं। मांझी, जिसमें अनपढ़ इंसान है जो पहाड़ को तोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है एक पहाड़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे विलेज तक हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही है। इंग्लिश में इंग्लिश जो एक हाउसवाइफ की कहानी है, लेकिन इफेक्ट कर रही है कई और लेडीज को कि तुम भी इंग्लिश सीख सकते हो। 3 इडियट्स, जो ना ही हमारी जनरेशन को, हमारे स्टूडेंट्स को, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी इंस्पायर कर रही है कि डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन, डोंट आस्क योर बच्चा कि तुम ये करो, ये तुम्हें ये करना है, अपनी उम्मीदें उन पे मत थोपो। फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। अब आ जाओ एनिमल और ये गो गोवा गॉन की बात कर लो। व्हाट एनिमल मूवी इज गिविंग यू अ मैसेज कि सबको मार दो, जो भी तुम्हारे परिवार के अगेंस्ट बोल रहा है, जस्ट शूट देम, जस्ट यूज द फीमेल्स एंड किल एज मच एज यू किल and go for the dialogues which are vulgar. The family cannot listen that together, है ना। वही हम बाहुबली की बात कर रहे हैं, लेकिन बाहुबली अगेन वही एक इमोशन कनेक्ट दिखा रही है। पहली मूवी जो है उसके अंदर माता के लिए प्रेम दिखाया गया है बाहुबली का, सेकंड सीक्वेंस जो बनाया गया उसमें बच्चे का प्रेम दिखाया गया अगेन से, मतलब दोनों का बेस वही है। मदर लव ऑफ बाहुबली इन बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2, द बेस इज सेम। अगला एक जो बंदा इसमें है, जो राणा जो भी है इस बंदे का नाम, जो कि विलेन का रोल प्ले कर रहा है, उसका पर्पस कुछ और है, उसका पर्पस साम्राज्य है। लेकिन बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 दोनों में जो मेन कैरेक्टर है उसका पर्पस क्या है? पहले में माँ की बात की मान रखना फर्स्ट में, और सीक्वल में माँ को आजाद कराना, प्लस वो दिखा रहे हैं लॉयल्टी ऑफ कट्टप्पा टुवर्ड्स बाहुबली एंड द साम्राज्य। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अपन ने मूवीज से सीखा अभी, आप ये मान लीजिए ये सारे मूवीज के प्रोड्यूसर्स आप हैं, आप इनमें से कौन सी मूवी है जो अपनी सोसाइटी को देना चाह रहे हैं? ऐसे ही रिसर्च वर्क है। अगर आपका रिसर्च वर्क ज्यादा से ज्यादा लोग साइट कर रहे हैं, साइट का मतलब आप समझते होंगे, साइट का मतलब होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ के लिख रहे हैं कि सपोज मान लो मैं किसी का भी नाम ले लूं, अभी जैसे मुझे एक अंकित कुमार जी का किसी का नाम दिख रहा है और मैं कह रही हूँ कि अंकित कुमार जी ने 2024 में ये रिसर्च की है, और मैं मेरे पेपर में अंकित कुमार को लिख रही हूँ कि अंकित कुमार 2024 ने ये बात कही है, ये हो गया साइटेशन। तो मैं जो अंकित कुमार की बात मेरी रिसर्च में लिख रही हूँ, वो मैं क्यों लिख रही हूँ? वो इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि उसकी एक रेलेवेंस है, उसकी रेलेवेंस मेरे रिसर्च को, जो कि मैं 2026 में कर रही हूँ, तब तक भी है। तो हम जो बात करना चाह रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च वर्क, दैट शुड बी ब्रॉड। फर्स्ट थिंग, ब्रॉड होना चाहिए। ये नहीं कि आज की सोच की कर ली, कल की नोवेयर, आई हैव नो आइडिया। अभी मैं कुछ भी आज की सोच लूं और कल का ना सोचूं और वो रिसर्च कर लूं, तो जो कल आने वाला व्यक्ति है वो आपकी रिसर्च पढ़ेगा ही क्यों? क्योंकि आपने जो टॉपिक लिया है या आपने जो थीम ली है वो आज के लिए सेंट्रिक है, सिर्फ टुडे। इट इज रेलेवेंट टुडे, इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द फ्यूचर। So select a research objective, select a topic which is relevant for the future also. अब कहोगे मैडम फ्यूचर में तो पता नहीं क्या क्या बदलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 2024 में बैठ के 2034-45 की सोचनी है, नो, बट एटलीस्ट 4 साल 5 साल की तो सोचिए। क्योंकि जब हम लोग अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको कोई लिखना सिखाएगा तो वो आपको भी बताएंगे कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लेटेस्ट रिव्यूज भी लेने चाहिए। जैसे आप 2024 में रिसर्च कर रहे हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 2024 का रिसर्च लिटरेचर रिव्यू आएगा। तो यानी जिसने 2023 में करी है या 2024 जनवरी में सबमिट करी है, उसका पेपर, उसकी थीसिस आप साइट कर रहे हो, 24 में कर रहे हो, 25 में कर रहे हो। तो व्हाट आई मीन टू से कि आप जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लें, जो भी रिसर्च टॉपिक्स लें, प्लीज बी फोकस, एटलीस्ट उसको 3 से 4 साल फ्यूचर विजन को सोच के सेलेक्ट करें। ऐसे नहीं कि बस आज का सोच के हमने सेलेक्ट कर लिया। पहली सिग्निफिकेंस तो यही है। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो लोग पढ़े, जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कोई टॉपिक आप दे दो जो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। अगर आपकी थीसिस ये ऐसा हो गया कि आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, वो प्रोडक्ट मार्केट में आपने डाल दिया और उसको कोई खरीदने नहीं आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने का फायदा क्या है? ये मान लीजिए आपने एक किताब लिख डाली, वो किताब छप गई, वो किताब मार्केट में चली गई, आप बहुत प्रसन्न है कि हाँ मेरी किताब आ गई, आपने 50 जगह ढिंडोरे पीट दिए, फोटोएं लगा दी, ये हो गया वो हो गया, आपको तारीफें भी मिल गई। बट नाउ द पॉइंट इज दिस कि वो किताब खरीदी कितने लोगों ने? किसी ने भी नहीं खरीदी।
व्हाट इज द रेलेवेंट ऑफ दैट बुक? जो गीता में बात लिखी थी कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, वो रिसर्च में एप्लीकेबल नहीं है। आई एम सॉरी। आपको कर्म करना है जिसकी फल की चिंता आपको करनी है, वही रिसर्च सक्सेसफुल है। आप एक ऐसी रिसर्च करके डाल दीजिए जिसका जो एंड रिजल्ट है वो ऐसा आ रहा है जिसको लोग सिर्फ आपको थीसिस प्रोवाइड करने के लिए दी जा रही है, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ रहा, उसको कोई साइट नहीं कर रहा, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है सोसाइटी में। इवन कोई ये भी नहीं बोल रहा कि तुमने जो टॉपिक लिया ये आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो शोध होना ही चाहिए। अगर आपका रिसर्च टॉपिक पे आपको एक भी व्यक्ति आपके सुपरवाइजर के अलावा ये बात नहीं बोल रहा है तो आपकी रिसर्च ही बेकार है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके सुपरवाइजर के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई और हो, जो भी उसको सुन रहा है या जिससे भी आप बात कर रहे हैं, अगर वो ये नहीं बोल देते आपको कि आपका जो टॉपिक है वो वाकई में जरूरत है, तो आपका शोध का टॉपिक ही गलत है। ट्रस्ट मी, आपका रिसर्च वर्क वो होना चाहिए जिसको 1, 2, 3 भले एक ही व्यक्ति बोले, लेकिन आपके सुपरवाइजर के अलावा कोई जरूर बोले कि यस दिस इज रिक्वायर्ड। इसलिए प्लीज बी फोकस ऑन द रिसर्च टाइटल, ऑन द प्रॉब्लम, on the objective when you are drafting the objectives, until unless you will not get this compliment कि yes ये research work होना ही चाहिए। I am telling you, आप PhD छोड़ दीजिए, मत करिएगा, लेकिन किसी भी ऐसे टॉपिक पे PhD कृपया करके आप ना करें जिसका फ्यूचर जीरो है, जिसको कोई नहीं पढ़ने वाला। तो डोंट डू दैट, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारे। और कभी भी कोई भी, जैसे हम लोगों ने अभी शायद कल भी आपको परसों कोई लेक्चर हुआ था जिसमें कहा था कि कॉन्ट्रडिक्शंस पे बात नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शंस पे बात नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी इस चीज से असहमत हूं। आप शोध कर रहे हैं, शोध के अंदर चीजें पॉजिटिव भी आएंगी, चीजें नेगेटिव भी आएंगी। आपको बस रेलेवेंस देखनी है, आपको बस ओरिजिनलिटी, रियलिटी ये देखना है कि ये सच है, ठीक है। आपको वेग या फेक चीज नहीं देनी है। उसके अलावा चाहे वो कॉन्ट्रडिक्शन ही क्यों ना हो, प्लीज राइट इट डाउन। क्योंकि अगर रिसर्च सिर्फ पॉजिटिव 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 आउटकम्स का ही एक जत्था होता तो रिसर्च की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कुछ तो नेगेटिव है तभी आप रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें से आप कुछ पॉजिटिव निकालना चाह रहे हैं तभी तो आप रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ड्राफ्ट करिए, इसका मतलब उस टॉपिक में कहीं ना कहीं उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तभी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगा कैसे। तो चाहे कॉन्ट्रडिक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव चीजें आ रही हो, लेट देम कम, बट दैट शुड बी नॉट फेक। आप फेक मत क्रिएट करिए। अगर मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं अभी फॉर एन एग्जांपल कि एलन, मतलब नॉट एलन एग्जैक्टली, बट या कोचिंग सेंटर्स की वजह से जो भी है, एलन, रेजोनेंस, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, और यही आपका टॉपिक है कि इतने सुसाइड केसेस हो रहे हैं कोटा के अंदर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर ये रिसर्च टॉपिक है तो आप इसका आंसर दोगे तुरंत। पहला पेरेंट्स, दूसरा कोचिंग सेंटर्स, तीसरा वर्क प्रेशर ऑन स्टडी प्रेशर ऑन द स्टूडेंट। हु इज क्रिएटिंग इट, द स्टूडेंट हिमसेल्फ और द सोसाइटी इज क्रिएटिंग। अब आपने कटघरे में एट दिस मोमेंट, एज सून एज मैं ये टॉपिक देती हूं आपको कि डू अ रिसर्च ऑन व्हाई द स्टूडेंट्स इन कोटा कोचिंग सेंटर्स आर कमिटिंग सुसाइड। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है। आप सबसे पहले उनके पेरेंट्स पे बोल देते हो, फिर आप कोचिंग सेंटर पे बोल देते हो, फिर उनके फ्रेंड सर्कल और एनवायरनमेंट पे बोल देते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि ये 3 रीजन मुझे मुख्य नजर आते हैं जिसकी वजह से बच्चा सुसाइड कर रहा है। अब अगर जैसे ही आप ये तीनों चीजें पेपर पे लिखते हो तो प्रश्न ये आता है कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अगेंस्ट अबाउट द पेरेंट्स, यू आर टॉकिंग अगेंस्ट अबाउट सम कोचिंग सेंटर्स। हाँ तो ठीक है, इट्स ओके, बट इजंट दैट रियलिटी? इट इज रियलिटी, इट इज रियलिटी। So when it is a reality, then you should not say a no. आपको बोलना चाहिए कि ये reality है, I want to search it out, I want to do a research on this only. क्योंकि जब आप ऐसा टॉपिक रिसर्च करते हो, और आज आप और मैं बैठे हुए हैं, हम 4 दिन 5 दिन, आप इनफैक्ट 10-11 दिन से अगर न्यूज़पेपर कोटा के जितने भी लोग पढ़ रहे होंगे, आपको पता है रोज सुसाइड हो रहा है। आप मुझे बताइए क्या ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं है क्या? ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इट इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट टॉपिक एंड इट इज अ रिक्वायरमेंट। इस कोटा शहर में जितने भी लोग हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता कि ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न वही है कि कितने लोग हैं आज तक जो इस टॉपिक पे रिसर्च कर चुके हैं। पहली बात, कितनी थीसिस है कोई डेटा आप लोगों के पास में? देयर आर वेरी फ्यू, थीसिस तो है ही नहीं, देयर आर वेरी फ्यू पेपर्स, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। अदरवाइज पीपल आर नॉट टॉकिंग। व्हाई?
because the contradiction is there. That's why they are not talking about it. But trust me, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस तरीके का कोई टॉपिक उठा लेता है, वो कॉन्ट्रडिक्शन में तो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा. बट बिलीव मी, ये जो थीसिस बनेगी, अगर ये रेलेवेंस पे बनेगी, रेलेवेंट बनेगी, फेक डेटा नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, तो जितनी ज्यादा ये साइट होगी और जितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होगी, हो सकता है ये गवर्नमेंट तक भी चली जाए. ये इतना रेलेवेंट टॉपिक है. सी, तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपका टॉपिक हमेशा ऐसा होना चाहिए जो वाकई में सोसाइटी को लगे कि यस, इन्होंने जो किया है वो हमें वाकई में बेनिफिट दे रहा है, जिसको आपको प्रोपोगेट नहीं करना पड़े. लोग खुद पूछें कि यू टेल मी नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर रिसर्च वर्क, क्या कंक्लूजन निकला. ऐसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं यहाँ पर. राजस्थान में टूरिज्म बहुत है, फाइन, बहुत है. उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अभी नाउ डेज इन कोटा आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म एवरी टाइम कि राजस्थान का टूरिज्म मानचित्र पे, विश्व मानचित्र पे है. लेकिन आप लोगों ने साइमल्टेनियसली वहां पे खबरें भी पढ़ी होंगी कि टूरिस्ट के साथ में स्पेशली लेडीज, बहुत सारे रेप केसेस हैं. उसको होटल में ले गए, मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, चोरी कर ली, है ना, या किसी जानवर ने किसी फॉरेन टूरिस्ट को, सांड ने सींग मार दिए, एटीएम से कैमरा चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया. ये सुने या नहीं सुने हैं? इवन बूंदी तक में सुना है कि जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ में रॉबरी कर ली गई, टूरिस्ट के साथ में मिसबिहेव किया गया, या किसी फीमेल को छेड़ दिया गया, या उनको चिटिंग की गई, या उनके साथ रेप कर लिया गया. दे आर वेरी कॉमन. ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट है, हम राजस्थान टूरिज्म की तो बात कर रहे हैं, हम रूरल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हम एक्सवाई टूरिज्म की बात कर रहे हैं, बट ये कितने कैंडिडेट्स ने पीएचडी करी है अबाउट द क्राइम्स ऑन टूरिस्ट इन राजस्थान? ये कितने लोगों ने रिसर्च किया अभी तक? है इसके ऊपर कोई डेटा अवेलेबल? किया है किसी ने इसके ऊपर कोई थीसिस आज तक? आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि ये रेलेवेंट है या नहीं है? आने वाले, मैं तो ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, आने वाले 4 साल में टूरिज्म इंडस्ट्री तो बंद नहीं होने वाली. 4 साल क्या, 40 साल में भी बंद नहीं होने वाली. तो क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है? अगर आप ऐसे रिसर्च में जंप करते हैं और इस रिसर्च से आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्राइम हो रहा है टूरिस्ट के साथ में, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, हाउ टू प्रोटेक्ट द फॉरेन टूरिस्ट फ्रॉम दीज सॉर्ट ऑफ क्राइम्स. बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसके अंदर, बहुत चैलेंजेस हैं. बट माय आंसर इज दिस कि इससे ज्यादा रेलेवेंस आपको टूरिज्म का और कौन सा टॉपिक लग रहा है राजस्थान में जो डिमांड में हो सकता है, जो फ्यूचर तक डिमांड में रह सकता है, और जो वाकई में प्रशासन, जिसको हम कहते हैं ना गवर्नमेंट, वो भी जिसकी तारीफ कर सकती है कि यस, इन्होंने कुछ काम किया और हमारी ही हेल्प करी है ये डेटा निकाल कर. ये होती है रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च वर्क. अनटिल अनलेस आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप किसी पे भी थीसिस बना लीजिए, थीसिस किसी पे भी बन जाती है, हार्डली मैटर्स. थीसिस हजारों रिपीटेटिव टॉपिक्स आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे. बट द चैलेंज इज हियर दैट आप ऐसा क्या टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है. That is called the significance of your research objective and research title, and that must be your focus point. मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने करी है डार्क टूरिज्म पे. आप ऑफ कोर्स क्योंकि टूरिज्म के नहीं है स्टूडेंट्स, बट डार्क टूरिज्म पे शी इज द फर्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम एंटायर राजस्थान जिसने पीएचडी करी है ऑन डार्क टूरिज्म. और उनको खूब उसको प्रशासन से भी, खूब सारे लोगों से उसको बहुत प्रेज मिला है. इनफैक्ट फॉरेन कंट्री तक भी उसको बहुत लोगों ने प्रेज किया है बिकॉज शी हैज डन अ थीसिस ऑन डार्क टूरिज्म. ठीक है, अब अगर मैं डार्क टूरिज्म की बात करूं तो अब मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, ये लड़की है, न्यूली मैरिड है, और अभी इसके बेबी हुआ है थोड़े दिन पहले, मतलब हार्डली 6 मंथ्स का बेबी है उसका. फाइन, नाउ टेल मी दिस, एक लड़की जो कि न्यूली वेड है, ठीक है, और हमारा राजस्थान की लड़की है, तो आपको पता है राजस्थान में थोड़ा सा कल्चर भी टिपिकल है ना, ऐसा हम पंजाबी कल्चर जगह चंडीगढ़ में तो रह नहीं रहे, वी आर इन राजस्थान एंड यू ऑल नो द सोसाइटी हाउ इज इट, राइट. सो उसके ऊपर प्रेशर्स भी हैं, ठीक है, कि भाई आपको ये नहीं करना, वो नहीं. डार्क टूरिज्म एक ऐसा टॉपिक होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर आप रिसर्च करते हो ऐसी जगहों पे जो कि हॉन्टेड है, जो जिसमें हम बोलते हैं कि भूत रहते हैं, या जहाँ पे लड़ाइयां या युद्ध हुए हो, जहाँ पे दुख, जैसे हल्दी घाटी तो लड़ाई का युद्ध हुआ है, जैसे भूतों का भानगढ़, तो हम भूतों की स्टोरी सुन चुके हैं उसके बारे में. कुलधरा गांव जो पालीवाल्स का गांव था, रातों रात खाली हो गया था, श्रापित गांव है जो कि, ये डार्क टूरिज्म होता है. ठीक है, और भी बहुत है इसमें, मैं लंबा नहीं बताना चाहती इसको, लेकिन एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है कि ये डार्क टूरिज्म है. ठीक है, अब मुझे आप ये समझाएंगे कि आपको क्या लगता है कि एक गर्ल जिसकी एज सिर्फ और सिर्फ 22 इयर्स है, जो कि न्यूली वेड है,
और अभी उसने कंसीव भी कर रखा है, आपको लगता है उसके पेरेंट्स या उसके इन-लॉज बहुत इजीली उसको बोलेंगे कि जा, तू जा भूतों का भानगढ़ रिसर्च के लिए, तू जा कुलधरा विलेज जा रिसर्च करने के लिए, तू जा ब्रिजराज भवन जा कर आ रिसर्च? डू यू थिंक कि उसको चैलेंजेस नहीं आए होंगे? यस, बहुत चैलेंजेस फेस करे उस लड़की ने। ऊपर से जब गाइड मेरी जैसी जो बोले कि जहां जा रहे हो वहां का फोटो खींचना ताकि आपकी रेलेवेंस दिखे, यस दिस इज अ बिग पॉइंट। अगर आप जिस जहां जा रहे हो उस जगह पे जब आप जाते हो और उसकी फोटो खींच लेते हो, गाइड को प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे वो फोटो रिसर्च वर्क में लगानी थी, थीसिस में लगवाई है मैंने। वो कुलधरा गांव गई है, उसकी फोटो, उसकी खुद की फोटो थीसिस में हमने लगवाई है। वो भूतों का भानगढ़ गई है, वो हमने थीसिस में लगाया है। दैट शोज दैट द स्टूडेंट इज सो सीरियस अबाउट द वर्क। लेकिन अब जो आउटकम आया है उसका, उस आउटकम से वो लड़की आज की तारीख में 3-4 पेपर्स टर्की में, श्रीलंका में, पता नहीं कहां प्रेजेंट कर चुकी है। एंड शी गॉट द वेरी बिग न्यूज़पेपर कवरेज आल्सो दैट शी इज द फर्स्ट कैंडिडेट हु परस्यूड पीएचडी ऑन डार्क टूरिज्म। तो अब ये जो टॉपिक है, ये रेलेवेंस इसलिए रखता है क्योंकि जब हम ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, डार्क टूरिज्म जो बहुत डार्क मतलब साउंड ही नेगेटिव कर रहा है, फिर वो अनभिज्ञता, बिकॉज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत है, घोस्ट है, जिन है, जिन्नात है, क्या है किसी को कुछ नहीं पता है, तो अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब ऊपर से एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई है राजस्थान में, वो आपने उठा लिया है। तो आपको क्या लगता है इस स्टडी की रेलेवेंस कितनी होगी? बस अब तक नहीं, इस स्टडी की रेलेवेंस बहुत ज्यादा होगी क्योंकि एक नया टॉपिक है ये, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत कम शोध किया गया है। तो जिस चीज पे शोध कम किया जाता है और उस पर अगर कोई आप जैसा स्टूडेंट जिसको इंस्पिरेशन मिल जाए कि हाँ मैं करूंगा, वो शोध करने जा रहा है, तो दैट्स मीन्स आप उस रिसर्च को मोर साइटेशन करोगे, क्योंकि उसके ऊपर पहले का काम है ही नहीं, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको उसी स्टूडेंट के रिसर्च वर्क को साइट करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि उसके अलावा रेलेवेंट डेटा ही अवेलेबल नहीं है। अब अगर मान लो आप में से कोई स्टूडेंट आज डार्क टूरिज्म पे पीएचडी करे इन राजस्थान, आपके पास चॉइस क्या है? आपको उस स्टूडेंट की थीसिस को पढ़ना ही पड़ेगा, आपको उसका साइटेशन करना ही पड़ेगा। तो उस स्टूडेंट की जगह वो आप भी तो हो सकते हैं कि आप ही ऐसा कोई टॉपिक उठा ले कि किसी और आने वाले फ्यूचर रिसर्चर को वो टॉपिक पढ़ना ही पड़े, आपकी थीसिस उठानी ही पड़े, उसको साइटेशन करना ही पड़े। गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट पे प्लीज अपने अकाउंट्स बनाइए, क्योंकि जितने लोग, हम एक रिसर्च की महत्ता इससे नहीं देखते कि मैंने 120 पेपर्स लिख लिए या मैंने 150 पेपर्स लिख लिए, हार्डली मैटर्स। मैं कह रही हूँ आप 2000 पेपर भी लिख लो, लेकिन अगर आपके पास में 200 साइटेशन भी नहीं है ना, कि 200 लोगों ने उसको पढ़ के साइट नहीं किया है, तो 2000 पेपर भी इररिलेवेंट है। कितने लोग पढ़ के आपके पेपर को अपने पेपर या अपनी थीसिस में साइट कर रहे हैं, वो आपकी थीसिस या आपकी रिसर्च जो भी आप कर रहे हैं, रिसर्च पेपर भी बना रहे हैं अगर, उसकी रेलेवेंस शो करता है। तो डोंट ट्राई टू डू दिस कि मुझे 10 पेपर्स चाहिए, मुझे 20 पेपर्स चाहिए, मुझे 30। मैं तो कह रही हूँ आप एक ही पेपर लिखो, लेकिन एक पेपर ऐसा लिखो कि 50 लोग उस एक ही पेपर को साइट करें। आपने 2 लाइन उसमें ऐसी लिख दी कि 50 लोग उसको साइट कर रहे हैं। जितने ज्यादा आपका पेपर साइटेशन पे जाएगा, उतनी ही ज्यादा आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव को रेलेवेंस मिलेगी, सिग्निफिकेंस मिलेगी। सो कीप दिस पॉइंट इज इन योर माइंड कि मुझे नंबर नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी आप एक पेपर से करें, लेकिन उसमें साइटेशन जरूर हो। आप कितने भी पेपर लिख लो, नो सेंस, देयर इज नो सेंस अगर उस पेपर को पढ़ के मैं एक लाइन भी आपकी साइट नहीं कर रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च वर्क। आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं, फॉर्मुलेशन कैसे करना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं एक छोटा सा 2 पॉइंट और है, पॉइंट भी नहीं है, बस 1 सेकंड की बात है, वो कह के फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो हम बात करते हैं। तो जब भी हम रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों में से कौन कौन से सहमत हैं इस बात पे, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री ऑन दिस? थिंक आउटसाइड द बॉक्स जब भी है। और आर एग्री? यस मैम। एवरीवन एग्री? अब बेटा यही बस यही मैं चेंज करना चाहती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे से मैं यही परिवर्तित करना चाह रही हूँ, जो तुम लोग परिवर्तित अभी भी नहीं करो। तुम्हें मेरी बहुत सारी क्लासेस की जरूरत है, इसका मतलब गलत, यू ऑल आर रॉन्ग। क्योंकि आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए, थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स। क्योंकि जो बॉक्स है ना, उसके एज होते हैं, बॉक्स देखा होगा ना सबने, जो बॉक्स होता है ना, उसकी 4 कोने होते हैं, वो लिमिटेशन में होता है। और मैं इतनी देर से यही समझा रही हूँ कि इतना लिमिटेशन में नहीं लाना है हमको हमारी रिसर्च को। थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स।
जितना उसको विस्तार से पढ़ोगे, जितना उसमें डेप्थ में जाओगे, उतनी ही नई नई चीजें आ जाएंगी और उतनी ही प्यारी आपकी रिसर्च और उतनी ही रेलेवेंट आपकी रिसर्च बन जाएगी. सो डोंट थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स व्हेन यू आर डूइंग योर रिसर्च वर्क. थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स एट ऑल. गॉट इट? Yes, ma'am. So by this I just want to sum up. It's not audible. Why not? It is audible. Am I audible now? हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Am I audible Yes, now? ma'am, आ रही है. आ रही है आवाज? Okay. आ रही है मैम आवाज. So this is आ रही my है मैम last आवाज. slide. This is my last slide. That thank you, and I'm looking forward from this exit to meet you somewhere else with some other entrance door, because every exit is a entrance to somewhere else. Okay, students. I hope आप लोगों को लेक्चर में चीजें समझ में आई होंगी. दो आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को कितना पसंद आया, कितना पसंद नहीं आया. बट This is wonderful. Good morning, ma'am. Really informative lecture, ma'am, from you. Ma'am, wonderful. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. thank you ma'am Ma'am, can I Thank raise you, my ma'am. question? Wonderful, ma'am. so much. आप लोगों को thank you ma'am. If you have any questions, you can ask me. Ma'am, Thank you, yes, ma'am. ma'am. Ma'am, Thank this you so side, much, Thank ma'am, you, for ma'am. your wonderful session. Each and everyone, please listen to me. Thank you so much, ma'am, for your wonderful session. We all learn very well, and that's your session is too much interesting and inspirable to all of us. And we all understand very well the difference between research objective, title, problem also. Especially I learned too much, because I was very confused about what is the research problem, what is the research objective. And of course we understand that problem should be under very must, research problem should be very must, because you told in earlier session that we are the future of India. And if we don't able to understand what is the research problem, our situation will be the Baman you in your video. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. That was really Thank you so much, Neha. And yes, you are right. You all will be like Baman then, because I don't want that the students will be like Baman at all, because that will be a very dangerous situation for everyone. Thank you so much, ma'am. Okay, students, if you have any questions, feel free ma'am, to ask my me. question, myself, Priyanka, ma'am, from Yeah, sports psychology area. Okay, Ma'am, Priyanka. As you explain, if I gonna think about a large scale research about on a large scale, so don't you think will it be limited to, if I ignore my area, the sports, and I go for a general topic, will it be a justice to my area? Because hardly people come forward for the research in physical education. So Yeah, it's a very nice question, Priyanka. yes, ma'am, I'm so eager to do research, but I'm confused whether I should go, whether I should take a topic from my this sports field or something else. Oh my God, who is this? मेरा पूरा question. Eager to do research, but I'm getting confused, ma'am, अब because मुझे आप ये hardly बताओ people कि जैसे come आप in my टेस्ट लेते हैं, field. पहले टेस्ट हुए थे आपके दूसरे, तो आपको पेपर देते हैं या बोर्ड पे लिखवाते हैं? दिनेश कुमार जी माइक ऑफ Topic कर यार, लीजिए प्लीज. Mic mute कर लो. बोर्ड पे लिखवाते हैं. तो आप तो अगर एक खाली पेज लिखेगा. ma'am. Dinesh, खाली पेज लिखेगा. please mute your मैं पेपर भी बना देता हूँ. Oh my God. Yeah, so basically, Priyanka, your question is that if you want to do your research work other than sports, whether it is relevant or not. That is your question? Hello? Yeah, Priyanka, Yes, ma'am. am I audible? So your question Yes, is ma'am, this, that you're you want to, audible, ma'am. you want to do something which is out of sports area, or you don't want to do that? Initially, before listening to your lecture, ma'am, I was very much pretty sure to do research in my area. But after listening to your lecture, I feel I must go out of this box. But then I want to ask, will it be justice to my field?
प्रियंका, टू बी ऑनेस्ट दीज डेज, बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा एनईपी के बारे में, सुना होगा आप लोगों ने, प्लस यूजीसी भी ये कह रही है कि आपको आपको मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देना चाहिए। ऊपर से ये और बोला जा रहा है कि वोकेशनल, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर ओह माय गॉड, दिनेश जी प्लीज कैन यू म्यूट योर माइक, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक। दिनेश जी क्या है, आप लोग लिख रहे हो किसी के पास? आप तो लिख रहे हो ना, लिख लो आप। मैं मैनुअली आपके पास से ऑफ कर दीजिए। दिनेश जी आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती, तो लिखिए कि नहीं क्या दिनेश जी? चलो ठीक ठीक, क्रेजी चलो। एनीवेज, सो प्रियंका, आपके आज सर नहीं कोई भी, तो आज के टाइम में से ही होना है अपने। मैम ये कोई आपका माइक म्यूट कर लो। आपके गांव में आम के पेड़ क्या? आम के दिनेश जी को मालूम नहीं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, फोन इधर-उधर म्यूट कर सकते हैं। इधर से जा रहा था तो देखा था मैंने आप लोगों आम में के से पेड़। किसी के पास में फोन नंबर है मिस्टर दिनेश का, तो इसलिए हमारा बड़ा क्या नो दैट इज माइक इज ऑन। can you please give a call to Mr. Dinesh and ask him to mute his mic? माइक ऑन हो तेरी आंटी भी है दिनेश जी, माइक को कीजिए। अभी लाउड है फिर आप। चलो ठीक, ये शायद सुन नहीं पा रहे हैं और सर आप इनको रिमूव कर सकते हैं, इनका आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, म्यूट। आप लोगों के अंदर ग्रुप में इनका नंबर होगा ना, ग्रुप में नंबर होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिस्टर दिनेश का, उसमें से नंबर लेके इनको फोन करके बोलिए, या तो लेफ्ट कर दे मीटिंग या फिर ये म्यूट कर ले, because as soon as I'm trying to say you speak out something and it's go all in vain. Anyways, प्रियंका मैं इतना बोल रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है इनको ब्लॉक करने का? मेरे पास है क्या ऑप्शन? लेट मी चेक आपके पास होगा। एडमिन के पास है, एडमिन जो एडमिन I don't think so that I'm the admin, but let me check if it is available. I'll do that. Anyways, Priyanka, I just want to give you an answer that because it is multidisciplinary research these days is going on, so you please go ahead with whatever you want to do, because don't think about it कि ये out of हो जाएगा, course हो जाएगा या out of my sports है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप स्पोर्ट्स को अगर टूरिज्म से रिलेट कर दो, स्पोर्ट्स टूरिज्म आपने सुना होगा, तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया। टूरिज्म एक एब्सोल्युटली एक अलग फील्ड है और स्पोर्ट्स एब्सोल्युटली एक अलग फील्ड है, बट यस यू कैन डू इट। ओके वाओ, तो आप ये कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। मैम मेरे पास कॉन्ट्राडिक्टरी एक और फील्ड है, टॉपिक है, मींस उसको क्या मैं यूज कर सकती हूँ अपने रिसर्च आर्टिकल या पेपर जो पब्लिश कर रहे हैं उसके लिए? व्हाट्स द टॉपिक मैम? इट इज लाइक वो जेंडर के ऊपर ही है मैम, थोड़ा सा ना, स्पोर्ट्स में कैसे उन लोगों को अपलिफ्ट करना है। हाँ, यू कैन जेंडर के ऊपर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, यू कैन। ओके मैम, बस आर्टिकल करना है मैम, मुझे रिसर्च आर्टिकल जो राइट करना है, उस पे रिसर्च थीसिस नहीं करना। You can do the thesis also on that. There's no problem. You can do the thesis, you can do the research article as well. There's no issue. जेंडर, अगर आप जेंडर इश्यूज के ऊपर कर रहे हैं, मान लो रोल ऑफ विमेन पे आप कर रहे हो इन स्पोर्ट्स, सो यस यू कैन डू, देयर इज नो प्रॉब्लम। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू कैन, आपका जो भी बेस सब्जेक्ट है, उस बेस सब्जेक्ट को, जैसे आपका स्पोर्ट्स एक बेस सब्जेक्ट है, उसको आप एक्स वाई जेड किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स जेंडर पे आप कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज का जो सिचुएशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी का है और उसी को लोग ज्यादा रेलेवेंट मानते हैं। देखो, अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स पे करोगे तो स्पोर्ट्स वाले लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर मान लो जेंडर उसको क्या कनेक्ट कर दिया तो सोशियोलॉजी वाले लोग भी उसको पढ़ेंगे। समझ रहे हो? वो साइटेशन के यस मैम लिमिटेड रह जाएगा अदरवाइज। यस, जितना ज्यादा मल्टीडिसिप्लिनरी आप रिसर्च करते हैं, उतनी ही ज्यादा रिसर्च साइट होती है और उतनी ही ज्यादा वो एप्रिशिएबल भी होती है, उतनी ही ज्यादा, लेट मी टेल यू प्रियंका फ्रैंकली, वो उतनी ही टफ भी होती है, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली 2-3 अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ रही होती हैं उसके लिए, तो वो टफ होती है, बट उसका रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस भी उतना ही होता है। I'm easily confused. I was totally confused क्योंकि पहले तो मैम, थैंक यू मैम, go ahead थैंक यू सो without मच giving a second thought, go ahead मैम। any other question? मैम यशवर्धन है। मैम मुझे आपका नंबर चाहिए, कांटेक्ट नंबर मैम, एक बार पर्सनल। हाँ, तो मैं अभी ग्रुप पे डाल देती हूँ, आप ले लीजिएगा मेरा नंबर। थैंक यू मैम, थैंक यू कौन सो बोल मच रहे हैं? मैम। कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? राइट, यश, या यशवर्धन प्लीज।
thank you so much, ma'am, for the very engaging lecture. This was one of the best lecture that I recently Thank you. had in the coursework, ma'am. My question Thank was, you, matlab, Yashvardhan. you progressed through the slide saying firstly it should click to us. One should have a vision of the subject they are targeting. Then Yeah. then apparently we came to it should be significance and relevance to others, and then you should have enough audience to have citations about your work. But ma'am, sometimes Yeah. significance and citations don't go in hand. If my topic is regarding specific area or a specific community, it might be having a significance impact even on a national term to that, but it might not be in the eyes of everyone. So I am really confused about should I give significance of the topic utmost priority, or I should target citations as well as the overall relevant, like the audience should be the world, or our audience should be a specific community or an area. So that was my question. Very nice question. Very relevant and very wonderful question, Yashvardhan, because it is a very practical problem when you are talking about at times about the significance. So maybe it is possible that it is, significant for you or for a particular group of community, but not very much relevant for the citation for other people. This is your question, if I'm not wrong, right? Yes, ma'am. So the point is this, to be very honest with you, significance is very much important for us. There's no doubt. But on the other hand, the citation is as well as important for us. So what you can do into this, you take a topic which is significant and relevant for you, right? But in between try to go with a few topics. Research में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने एक जो टॉपिक ले लिया, आपके जितनी भी अंदर के चैप्टर्स बनने वो उसी टॉपिक पे चलते ही जा रहे, ऐसा नहीं होता है. आप इंट्रोडक्शन जो चैप्टर लेंगे आपका, उस आप जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेंगे, उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर जो आप डेटा कलेक्शन करेंगे, उस डेटा कलेक्शन के अंदर, और जहां पे आप उसका टेबुलेशन फॉर्मेट करेंगे और फाइंडिंग, उसके अंदर कुछ चीजें जो आपके दिमाग में हैं, जो साइटेशन के लिए जरूरी है, वो पॉइंट्स आप उसके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं. समझ रहे हैं आप इस बात को? आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे अभी हमने बात करी थी इनके प्रियंका ने जो टॉपिक पूछा, जैसे स्पोर्ट्स एंड जेंडर पे बात करना चाहती है, ठीक है, स्पोर्ट्स इनका बेसिक है और जेंडर ये ले रही हैं, तो सोशियोलॉजी और स्पोर्ट्स हो गया. लेकिन ये भी सब लोग साइट नहीं करने वाले, ये वही साइट करेंगे, या सोशियोलॉजी वाले करेंगे या तो स्पोर्ट्स वाले करेंगे. मैं कॉमर्स की हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर इसके अंदर कुछ चीजें, अंदर के जो टाइटल, जिनको हम सब टाइटल्स बोलते हैं, अगर सब टाइटल्स ऐसे डाल दिए जाए कि एक आईटी वाला भी उसको पढ़ रहा है, मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे इश्यूज को स्पोर्ट्स के अंदर हाईलाइट करना चाहिए, तो अब आपने आईटी भी उठा लिया है, आपने मेन टॉपिक में नहीं लिया है, लेकिन आपने अंदर उस चीज को उठा लिया है. आप कभी भी कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको थीसिस का टॉपिक नहीं पता होता, आप टाइटल डालते हैं. आप मान लीजिए टाइटल डाल रहे हैं स्पोर्ट्स एंड जेंडर, तो जैसे स्पोर्ट्स एंड आईटी, अब स्पोर्ट्स एंड आईटी भी अगर आप डालेंगे ना, तो भी प्रियंका के रिसर्च वर्क ऑनलाइन विजिबल होगा, क्योंकि टाइटल ऑफ द टॉपिक स्पोर्ट्स एंड जेंडर लिया है, बट उन्होंने अंदर आईटी की भी बात करी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे इश्यूज को आईटी के थ्रू कैसे स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट किया जाए, तो उन्होंने एक सब टाइटल अंदर घुसा दिया. समझ रहे हैं आप? अब कोई स्पोर्ट्स एंड आईटी ढूंढ रहा है बाई चांस, तो दे विल सर्च दिस कीवर्ड स्पोर्ट्स एंड आईटी, इसमें ऑटोमेटिकली प्रियंका का जो वर्क है वो गूगल पे आ जाएगा. आर यू गेटिंग मी? So need not to change the significance and relevance of your topic, but as a subset, as a part, as a sub part of the thesis, you can inculcate the topics inside your thesis. This you can do. Got it? क्योंकि ऐसा नहीं होता है. One more thing. Like you talked about ma'am doing PhD on dark tourism, which is very relevant as in the near future as well. But apparently, because it was a new topic for Rajasthan, as you stated, so she might have found difficulty in finding. Basically, the review of literature would be very hideous task for her. So, ma'am, can a topic such as a community tourism or a community breed or a Indian breed conservation through management, that was something which I was looking for. So there, because we have lost many things in India because of
the lack of knowledge, and the literature was also burned and all. So apparently breeds specifically in Rajasthan are lost. The mare gene is lost. So basically they can only again develop it through the proper management of what is left with them. But the problem is this: such topics have very less content when it comes to. So if someone wants to break through any significant, let me reply you for this. See, when you are talking about a topic which is comparatively new for the researchers, yes, and they have lack of content, especially if we'll talk about the review of literature, right? So in that yes, case, what we can do in that case, you can. One thing I want to tell you, there are so many researches has been done in foreign countries on these topics. Like we talk about dark tourism, there's so many researches has been done on the dark tourism in foreign countries. So she have taken the review of literature from that place. Secondly, as you talk about this topic, अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं, अगर आपको गूगल पे कंटेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपको रिसर्च पेपर्स में बहुत कम मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत ही मिल रहा है, तो आप ट्रस्ट करिए आपका जो टॉपिक है वो इतना रेलेवेंट जरूर होगा जिसके ऊपर आपको न्यूज़पेपर कटिंग जरूर मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट का डेटा जरूर मिल जाएगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं होता कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है कि आप जर्नल में से कुछ उठा लें, आप किताब में से कुछ उठा लें, किसी की डेफिनेशन उठा लें, यही रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है। Review of literature does include the articles. Review of literature includes the newspaper cuttings articles also. Review of literature includes the reports of the government associations and agencies also. So you can talk about archaeological reports. You can talk about other government reports. You can talk about the newspaper cuttings that ये इस अखबार में XYZ डेट को छपा था और उन्होंने इसको हाईलाइट किया था कि यहाँ पर कंजर्वेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, whatever. So and what about ma'am, what about oral knowledge as well? For example, if someone is even if it is from oral nahi, एक minute, let me tell you, oral knowledge you can take, but oral knowledge you can take only if you are taking observation interview method you have to select. If you want to do this oral knowledge or information somewhere, or you want to inculcate, then in your research work, other than the questionnaire survey, other than the observation method, you have to include interview method. As soon as you include the interview method, then you have to frame the questions which you are going to ask to the interviewer. You have to take a photograph also, or you have to write down the answers of the interviewer, get his signatures on that paper, or either record that particular thing, because you need a proof in the end of the day in any ways, right? Even if you don't want to inculcate this all in the research, still you have that proof. You should have that proof कि हाँ उन्होंने ही बोला है या उन्होंने जो दिया है उस पे सिग्नेचर उन्होंने किया कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है। लेकिन आपको अपने रिसर्च वर्क के अंदर इंटरव्यू मेथड डालना पड़ेगा। एज सुन एज आप इंटरव्यू मेथड उसमें डाल देंगे, आप उन व्यक्ति का नाम, डेजिग्नेशन बता दीजिए, उनसे आपने जो क्वेश्चंस पूछे वो बता दीजिए, उनका आंसर आप अपनी थीसिस में लिख दीजिए, इट विल वर्क। बट द ओनली कंडीशन एप्लीकेबल इज या तो आपके पास में वो वर्बली रिकॉर्डेड होना चाहिए, या वो इंटरव्यू शूट होना चाहिए, या फिर वो लिखित में जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं वो उनके रिप्लाई पे उनका सिग्नेचर होना चाहिए। दैट्स ऑल। बिकॉज अदरवाइज अगर कोई आपसे वर्बली कुछ कह रहा है, मान लीजिए इट इज लाइक, टेक इट वेरी लाइटली यशवर्धन, जंगल में मोर नाचा किसने देखा टाइप, किसने देखा, राइट, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये थीसिस है। सो वी कैन नॉट, आपने कहा कि जंगल में मोर नाचा था, किसने देखा था? मैंने देखा था। इट डजंट मैटर, मैंने तो नहीं देखा, तुमने तो नहीं देखा। तो वो जो आपका रिप्लाई होगा कि मिस्टर एक्स ने ये आंसर दिया, तो ये कैसे मान लूं कि मिस्टर एक्स ने आंसर दिया है? तभी तो प्लेजरिज्म की बात आ जाती है। इसीलिए आप अगर ये ले रहे हो, आप ले सकते हो, इट इज अलाउड, बट द कंडीशन इज दिस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर। इसके बाद आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। You can. Thank you so much, ma'am. 5-4 minutes left with me now. जी मैम। मैम, yes, one by one, please. Yeah. मैम नमस्ते। नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि साहित्य के जो सब्जेक्ट है उसमें प्रासंगिकता या रिलेवेंसी का समावेश किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं? देखिए, साहित्य के सब्जेक्ट में वैसे तो मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं, बिकॉज मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो आई रियली डोंट नो अबाउट दिस साहित्य की सब्जेक्ट की रेलेवेंस। बट टू बी ऑनेस्ट, आपके पास में देखिए, अगर साहित्य पे आप कुछ कर रहे हैं ना, तो आपके पास में सबसे बड़ा बेस होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अलावा आपके पास में ऐसा कोई भी बेस नहीं है जिसके ऊपर रहकर आप अपना रेलेवेंस प्रूव कर सके, क्योंकि साहित्य का मतलब ही यही है कि इट इज अ प्रोलॉन्ग स्टडी व्हिच यू आर नाउ गोइंग टू स्टडी, ठीक है।
So you have to please be careful when you are doing the review of literature. आप उसका relevance review of literature से prove कर सकते हैं, बाकी और कोई option नहीं है आपके पास. जी मैम. और बताइए. Yeah. Ma'am, first of all, thank you very much for this insightful session. Thank you. Ma'am, I really wanted to know that you said, suppose you are comparing about rural tourism in different states and you gave examples of states. Ma'am, I just wanted to know, when you are comparing something, you have some affiliations, like you can be emotionally or you can be connected with some topic, and I just wanted to know, ma'am, how someone can be objective when they are doing research. Subjectivity is a very big issue. Okay. So basically, what is exactly you want to know about it? Because I'm really confused. Ma'am, it becomes very difficult sometimes because we always keep, suppose we are comparing or describing. I am from history department, so suppose I am doing research on any personality or any phenomena. So the problem is that I feel like I should put it at the forefront, and I feel like a emotional affiliation. So it becomes very difficult sometimes to be objective. So how should I deal with it and being neutral while describing? Vatsal, because your topic, you are from history background. If you are making a comparative, you are trying to make a comparative study. Is it so? You're trying to make study on some specific person. You want to do a comparative study, right? If I'm not wrong. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question. मैम, आपने हम लोगों को है ना रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए बोला था. मैम, रिसर्च पेपर मुझे पढ़ने हैं, तो आपने कुछ साइट बताई थी. रिसर्च इंजन हो गया, रिसर्च स्कॉलर हो गया, रिसर्च गेट हो गया, एंड मैम एक और बताया था आपने. वो क्या था मैम? हेलो. So, Vatsal, when we are talking about when you are doing a research on personalities, like, or if you are making especially a comparative study, see, आपके पास में एक सबसे बड़ा जो relevance है इस चीज का या objective है, वो ये है that you have to be very very realistic with the things. Whatever it was is it is as it is. आप modification नहीं कर सकते उसके अंदर, because you are making a comparative study. जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है. So you cannot modify that thing कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्ट इमोशनली है, इसका कनेक्ट इमोशनली नहीं है, या आप अपने मेंटल परसेप्शन से उस पर नहीं जा सकते, क्योंकि आप साइकोलॉजी पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं. एंड हिस्ट्री यू कैन नॉट undo. Psychology you can change, but history you can't. So when you are making a research work on a history, and especially when you are making a comparative study on some personalities, you have to be very very realistic with whatever it was, or it should be as it is. You can't make any modification. I hope I have justified my answer. Yes, ma'am. I have a question, ma'am. If I can, please. Yeah, please. Thank you so much, ma'am, for the informative lecture. I'm very obliged. Thank you, ma'am. Ma'am, may I know how to find the papers which are most relevant or most significant for the study? Like if I'm searching for sustainable marketing, the papers on Google Scholar or various platforms, then what is the criteria to find that these papers are the most relevant? Are the citations the only point? Yes. So Krishna, when we are talking about the most relevant papers, the simplest way is the Google Scholar, or you can say that if it is open accessible journals, then it is of course good. And if it is Google Scholar citations are there, then it is definitely very relevant, because citations, maximum time people cite or the researchers cite those papers in which they got some good information. So my first advice is that please, whatever topic you are selecting, whatever topic you are choosing or searching, try to search first of all it on Google Scholar. How many citations are there? Because as much as citations are there in the paper must be more relevant. And then after you go to all the other search engines, all the other like open access journal, or you can go with the Scopus Index journals, or you can see some other journals also on the ResearchGate or Academia. But the first preference should be always Google Scholar, because these citations are very relevant. Suppose I have a paper on marketing tourism,
and there are 100 citations of that paper. So first you read that paper, that why this paper is cited 100 times. What is there written in this paper? Why it is cited 100 times by the different researchers? As soon as you will study that paper, you will got to know that yeah, this is the main important point which is absolutely mentioned in this paper, but quite possible there are few more topics which are not there. So then you can start searching some other papers as well. But yes, Google Scholar is the first thing. Okay, thank you so Go much. for citations. Yeah. Ma'am, one question again from my side. Ma'am, please one question. आपने जैसे कहा था कि review of literature है, उसके बाद we have to add that research gap. What is that? Research gap में is it essential if an individual is going for experimental type of research? तो experimental तो वो comparison करने वाले, तो उसमें क्या, उसमें भी हमें research gap को add करना होगा? रिसर्च गैप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च गैप वो होता है जिसके अंदर हम दो चीजें देखिए, एक होता है आपका एक्चुअल रिजल्ट, एक होता है आपका डिजायर्ड रिजल्ट, कि एक्चुअली ये है, डिजायर्ड ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइनलाइज कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट क्या है. ठीक है, when you decide the desired result, that this is the desired aim or that this is the desired thing which I want to achieve from this research, then you have to start searching कि ये किसी और ने कर रखा है क्या, और कर रखा है तो कहाँ तक कर रखा है, और नहीं कर रखा है तो क्या नहीं कर रखा है. These sort of answers you should have to focus first of all. जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको गैप नजर आने लग जाएगा कि ये होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, बट ये ही हुआ है. ठीक है, अब जैसे ये पता चल जाएगा कि ये ही हुआ है केवल, तो जो बीच में रह गया है वो क्या है? दैट इज द गैप. ये आपको फुलफिल करना है, ये आपको फुलफिल करना है आपके रिसर्च वर्क से. ठीक है, दिस इज समथिंग. अब एक छोटा बहुत लेमन, ठीक है, अभी हमारी क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, एग्जैक्टली 12:30 नाउ, बट आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल. आपने सब्जी बनाई है कभी? सब्जी, यस मैम, हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाइए ना. If you miss something, to put some. अगर सब्जी में कम हो जाता है, आप XYZ को खिला रहे हो, आप किसी को भी खिलाते हो, और आप मान लो हमेशा एक ही टेस्ट आता है उसकी आपके हाथ की उस सब्जी का, लेकिन उस दिन उस टेस्ट में कुछ मिसिंग है, तो जो खाने वाला है वो आपको बता देता है कि आज इसमें ये मिसिंग है, isn't it? और फिर आपको तो आज मैं भूल गई ये डालना. Ma'am, it means we are on our own research we are putting a question कि ऐसा यही करना पड़ेगा. You got it ना, ये करना पड़ेगा. If you really want to make good research work, if you really want to find out the research gap, you have to put a question mark on your own work कि ये मुझे करना था लेकिन मैं यही कर पाई. You got the research gap. तो मैम वो वापस तो नहीं भी, तो उसमें गरम मसाला नहीं डाला है. तो ऐसा तो नहीं वापस से बनाओ करके. नहीं ऐसा नहीं कहेगा कोई. नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि वापस बनाओ. एटलीस्ट कुछ तो अचीव हो जाएगा. यस मैम, है ना. तो आप जब भी रिसर्च वर्क करें तो प्लीज इसको थोड़ा फोकस करके लिखें. हम उसी सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं फिर. हाँ, उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर लेंगे, डोंट वरी. इट इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 15 मार्च को शायद दोबारा मिलेंगे. मेरी एक और क्लास है आप लोगों की, लेकिन वो बहुत 15 मार्च को है. So I'll see you all. मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा. थैंक यू मैम. क्वेश्चन था मेरा. माय गॉड, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के. मेरे क्रू में आ जाइए ऑफिस के अंदर, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे दूंगी बैठकर. यहाँ पर मेरे को लिमिटेड टाइम दिया गया है. You can come in room number 120, department 121, Department of Commerce and Management any time. I'm here only. आप यहाँ आके पूछ लीजिएगा, आपको जो भी पूछना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैम यूनिवर्सिटी में जेडीवी कॉलेज में? No, I'm in University of Kota. ओके मैम. मैम मेरा टॉपिक है. मैम पूछो. हाँ पूछो जल्दी से पूछो, फिर मेरे को ऑफ करना है क्लास. पूछिए. मैं होम साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा टॉपिक मैम ओबेसिटी को लेके है कि जो आज के टाइम में अडल्ट हैं बहुत सारे, उन पे ओबेसिटी मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है या फिर फास्ट फूड ज्यादा इंटेक कर रहे हैं. तो इसमें मैम क्या इस तरीके से और कुछ ऐड कर सकते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाए आज को देख के? हाँ, बहुत कुछ ऐड कर सकती है ना आप. इसके अंदर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऐड करिए. इसके अंदर एक तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऐड करिए कि ये जो ओबेसिटी है ये ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन ओबेसिटी हो किसके अंदर रही है? मैक्सिमम टाइम में हो रही है यंगस्टर्स के अंदर हो रही है. तो इसका प्रभाव पेरेंट्स मतलब स्पेशली माताओं पे क्या पड़ रहा है, ये आप पॉइंट दे सकती है. इसके अंदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पेरेंट्स पे डाल रहा है ये. एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू.
बट अभी मैं ज्यादा आंसर देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा गैप मिला है। आई थिंक उसके बाद आपका एक और क्लास है, सो आई विल कैच यू लेटर। आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख के रख लीजिएगा, 15 मार्च को आई विल आंसर देम। प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑन 15। बिल्कुल बाय। मैम आप प्लीज अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में प्लीज। थैंक यू मैम। ओके बेटा बाय। मैंने thank ऑलरेडी you, शेयर ma'am. कर दिया है, चैट बॉक्स में है मेरा नंबर, मैं शेयर कर चुकी हूँ। Thank you, ma'am. बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. धन्यवाद मैडम।